58 થી 60 અને 60 થી 65 વર્ષની ઉંમરની અંદર તમારો આખો ફેસ બદલાયેલો લાગશે. એનું કારણ ઢળતી ઉંમરની અંદર આપણું બોડી કોએન્ઝાઇમ બનાવવાનું ધીરે ધીરે ઓછું કરે છે. આપણને ખબર નથી વોટ ઇઝ ધેટ કોએન્ઝાઇમ ઓર CQ10. પણ કોઈ જેવા મહાપુરુષો છે કે જેની પાસે વિરલ દીર્ઘદ્રષ્ટિ છે, ફોરસાઇટ. સાઇટમાં અને ફોરસાઇટમાં પણ ઘણો ફરક છે. ફોરસાઇટ એટલે જે સામાન્ય લોકોને નથી દેખાતું એ જે જોઈ શકે છે એ અસામાન્ય વ્યક્તિ છે અને એને દીર્ઘદ્રષ્ટા કહેવાય. આવનારા સમયને જે લોકો પારખી શકે છે એમાંનો તમને એક દાખલો આપું. ધીરુભાઈ અંબાણી. એને ફોરસાઇટ વિશે કોઈને બેમત ના હોય, પણ એમણે જ્યારે જામનગરનો પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો 8000 એકરની અંદર, ત્યારે પહેલી એક્સપર્ટ એટલી સૂચના આપી હતી કે 7 પોઈન્ટ સુધીનો જળ ખમી શકે એવો પ્લાન્ટ તમારે તૈયાર કરવો જોઈએ. એમણે 8.7 નો રખાયો અને ભુજના ધરતીકંપ વખતે કચ્છને સૌરાષ્ટ્રને નુકસાન થયું એ પ્લાન્ટ ના. ક્રેડિટ ગોઝ ટુ ધ ફોરસાઇટ ઓફ ધીરુભાઈ. હું તમને આજથી 20 વર્ષ પહેલા દાખલો આપું. 25 વર્ષ પહેલા કે જ્યારે રિલાયન્સ પાપા પગલી ભરતું હતું, નરોડાની અંદર 4-5 રૂમ હતી, એ લોકો વિમલ કાપડ બનાવતા અને એ વખતે મફતલાલ ગ્રુપ પણ કાપડ બનાવતું. એ વખતે આ બિગિનર હતા. ધીરુભાઈ બિગિનર હતા, રિલાયન્સ બિગિનર હતા. એમણે કાપડ બનાવવાની સાથે સાથે દુનિયા ક્યાં ચાલે છે એના ઉપર એમની નજર રાખી. ધીરે ધીરે પેટ્રોકેમિકલમાં આવ્યા, આમાં આવ્યા, તેમાં આવ્યા, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનમાં આવ્યા. આજે કાપડ બનાવતા બીજા જે તે વખતના કન્ટેમ્પરરી હરીફ ક્યાં છે અને ધીરુભાઈ ક્યાં છે એનો ડિફરન્સ જોઈ શકે. ક્રેડિટ ગોઝ ટુ સપોર્ટ. ફોરસાઇટ છે તો આવતીકાલની દુનિયાને હું અને તમે જીતી શકીએ છીએ. એક ધીરુભાઈ અંબાણી 8000 એકરના પ્લાન્ટની અંદર, જામનગરની અંદર જે લોકો ગયેલા છે એ લોકોને ખબર છે, 3000 એકરની અંદર ફક્ત અને ફક્ત આંબા ઉગાડેલા છે અને એ પણ ઓર્ગેનિકલી ગ્રોન, કોઈ કેમિકલ નહીં. હું તમને વાત કરું હતી 10-12 વર્ષ પહેલા, અને આજે એ વર્લ્ડના સૌથી મોટા ઓર્ગેનિક મેંગોના એક્સપોર્ટર છે. અને આવનાર 10 વર્ષની અંદર જુઓ કે ઓર્ગેનિક ફૂડનું મહત્વ શું છે. જેની પાસે ફોરસાઇટ છે એવા બહુ ઓછા લોકો જન્મે છે. કૃષ્ણ છે તેની પાસે ફોરસાઇટ છે, ચાણક્ય છે તો ફોરસાઇટ છે. આજે જે એક્શન લે છે એ એક્શનના પરિપ્રેક્ષની અંદર એમના ભવિષ્ય હોય છે અને ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આજે સ્ટેપ લે છે. એવા ત્રીજી દીર્ઘદ્રષ્ટા થઈ ગયા આપણા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. આજની પરિસ્થિતિને નથી જોતા, ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આજે શું કરવું તે જોયું. અને આજે જે 2 કલાકની અંદર હું અને તમે જે સાંભળવાના છે એના મૂળની અંદર પણ એક દીર્ઘદ્રષ્ટા છે કે જેની પાસે ફોરસાઇટ છે. એક એવો મહાનાયક, એવો સુપરમેન, એક એવો સુપર હીરો કે જેણે હું અને તમે કલ્પના પણ ના કરી શકીએ. 5,000 વર્ષથી જે લોકોને જે નથી સૂઝ્યું એવો એક પોઈન્ટ આ મહાનાયકે પકડ્યો. એના ઉપર કામ શરૂ કર્યું આજથી 30 વર્ષ પહેલા. મારી પાસે 3-4 સ્લાઇડ પણ છે. હું તમને જે લોકો અભ્યાસો છે એ લોકોને સાથે ખાસ કહીશ. હમણાં એક સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું હતું ડોક્ટર પ્રતાપ રેડ્ડી, એપોલો હોસ્પિટલના CEO. એણે એમ કીધું કે આવનારા 10 વર્ષની અંદર 1 લાખ નવી હોસ્પિટલની ઇન્ડિયાને જરૂર પડશે. ડોક્ટર્સ વધતા ગયા, ફેકલ્ટીઝ વધતી ગઈ, મેડિકલ સાયન્સ એડવાન્સ થતું ગયું, નવા ઇક્વિપમેન્ટ્સ આવ્યા. અત્યાર સુધી મેડિકલ સાયન્સ તમારા ઓર્ગનને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રીટમેન્ટ કરતું હતું, એ આજે સ્ટેમ સેલ સુધી આવ્યું. વિજ્ઞાને પ્રગતિ કરી. હું તમને એક સવાલ કરું છું, ડિસીઝ અટક્યા ખરા? હું તમને ઘણા એવા ડિસીઝના નામ આપું કે જે છેલ્લા 5-7 વર્ષની અંદર મેં તમે સાંભળેલા છે. મેડકાઉ, બર્ડ ફ્લુ, H1N1, ચિકનગુનિયા, ડેન્ગ્યુ, HIV આજથી 10 વર્ષ પહેલા અસ્તિત્વમાં હતા. લેપ્ટોસ્પાયરોસિસ. ખેતરમાં ખુલ્લા પગે જાઓ અને લેપ્ટો લાગી જાય. જે લોકો સાઉથ ગુજરાતના જે ખેડૂત છે એ લોકોને ખબર છે, દરેક ગામમાં લેપ્ટોનો એક કેસ છે.
આ બધા નવા નવા ડિસીઝ આવે છે. દર વર્ષે આપણે નવો ડિસીઝ મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. આજે આને કંટ્રોલ કરો, આવતીકાલે બીજો કોઈ રોગ. ડિસીઝ વધતા જાય છે, મેડિસિન વધતી જાય છે, ડિસીઝ પણ વધતા જાય છે. ભલે ડોક્ટર ગમે એટલા વધે, ડિસીઝ વધતા જ રહેવાના કારણે આપણને ચેલેન્જ કરતા હોય આપણે રોકવું હતું. અને એની સામે મેડિકલ સાયન્સ ઘણી બધી બાબતમાં ઘણી બધી અને લાચાર છે. હું એટલું પણ કહીશ કે એડવાન્સ મેડિકલ સાયન્સના આપણા ઉપર ઘણા ઉપકાર છે, પણ એની સાથે આપણી બેઝિક ઇમ્યુનિટી, આપણું બેઝિક રેઝિસ્ટન્સ પણ ખતમ કરી નાખેલો છે. હું તમને એક બુકનું નામ આપીશ. એ બુકનું આજે મારી પાસે છે ને, જે લોકોને માટે બુક જોઈતી હોય એનું પ્રોવાઈડ કરીશ. એ બુકનું નામ છે ડેથ બાય પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ, અને એના રાઇટર છે ડોક્ટર રે સ્ટ્રેન્ડ, અને પોતે યુએસ ના એમડી છે, રિનોમ્ડ એમડી. એની અંદર એ લોકોએ લખેલું છે કે યુએસ ની અંદર જેટલા ઇલીગલ ડ્રગ્સ થી મોત નથી થતા, જેટલા ઇલીગલ ડ્રગ્સ થી, રિપીટ, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં હું બોલું છું, જેટલા ઇલીગલ ડ્રગ્સ થી મોત નથી થતા એટલા લીગલ ડ્રગ્સ થી થાય છે. This is the consequence of the medication or chemical or synthetic material we used to take it. આજે ફેશન થઈ ગઈ છે, બેબીને તાવ આવે છે, રાધેન્દ્ર બનતા લઈ જાય, આપણે કોણ કરીએ કેમ ડોક્ટર ના લઈ જાય. એક જ વસ્તુ, પેરાસિટામોલ આપો, તાવ થાય, તમે ખુશ, તમારી બોડીની ઇમ્યુનિટી. તો હેલ્થના મૂળમાં શું છે? તમારી ઇમ્યુનિટી. તમારા બોડીના મૂળમાં શું છે? તમારો સેલ. એક મધરનો સેલ છે, ફાધરનો સેલ છે. એ બે સેલમાંથી એક સેલ બન્યો, નવ બાળક આવ્યું. એ સેલે ટિશ્યુ બનાવ્યા, ટિશ્યુ ઓર્ગન બનાવ્યા, ઓર્ગને તમારી સિસ્ટમ ડેવલપ કરી અને સિસ્ટમથી બોડી ફોર્મ કરી. તો તમારા બોડીના મૂળની અંદર શું છે? સપોઝ આજે હું દેખાઉં છું 5 ફૂટ 9 ઇંચ, આ હું મિતેશ છું. ફિઝિકલી તમે મને જોઈ શકો છો, તમે મને અનુભવી શકો છો, મને ટચ કરી શકો. આ મારું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે. પણ તમે દાંડા સરો લઈને મને અહીંથી ચોપ કરવાની શરૂઆત કરો, કાપવાની શરૂઆત કરો, શરૂઆતમાં મારા હાથમાં, મારા લિમ્ફ તમારા હાથમાં આવશે, હાર્ટ, કિડની, લીવર, ઇન્ટેસ્ટાઇન, ધીસ ધેટ. એને તમે ફર્ધર પર ટર્ન કરો તો શું આવશે? ટિશ્યુઝ. એ વખતે હું દેખાઈશ નહીં. ટિશ્યુઝને તમે ફર્ધર પર ટર્ન કરતા આગળ ચાલો છો તો છેવટે શું છે? સેલ. 60 ટ્રિલિયન સેલ, 600 અબજ કોષનું બનેલું આપણું આ શરીર છે. એ સેલ આપણો વીક થાય છે. એ સેલને કેવી રીતે એમ્પાવર કરવો? આપણને ખબર છે, પેલા ઋષિ, ચ્યવન ઋષિ, એક રાજાને બુઢાપો આવી ગયો. એની ભોગ લાલસા એટલી બધી હતી કે હવે મોત આવશે, મને જુવાની મળે તો કેવું સારું, ભગવાન પ્રસન્ન થયા, શું જોઈએ કે મને ફરી પાછો જુવાન બનાવો. અને એ વખતે ચ્યવન ઋષિએ જે આપ્યું એ છે ચ્યવન પ્રાસ. આયુર્વેદા એ પુરાતન સંસ્કૃતિ છે કે જે તમારા ડિસીઝને મૂળમાંથી કાઢે છે. પણ કહેવાતા આયુર્વેદના પીઠાધીશોએ આયુર્વેદ પાસેથી લીધેલું જ છે. આયુર્વેદાને કશું આપેલું નથી. તો હું જે મહાનાયકની વાત કરું છું, એને જોયું કે આયુર્વેદા આટલું પ્રભાવી છે એ ઇન્ડિયામાં ખબર છે. ઇન્ડિયાની આજુબાજુ થોડા ઘણા 2-4 દેશોને ખબર છે. પણ હું જ્યારે કેનેડા જાઉં છું, હું જ્યારે યુકે જાઉં છું, હું જ્યારે યુએસ જાઉં છું, ત્યારે આયુર્વેદાને કોઈ સમજતું પણ નથી કે નામ પણ ખબર નથી. આવું કેમ? તેમણે જોયું કે દે આર વેરી રેશનલ પીપલ. એ લોકો બુદ્ધિગમ્ય છે. તમે એમ કહેશો કે આ તુલસીથી કેન્સર દૂર થાય છે, દે વોન્ટ બિલીવ. તુલસીથી કેન્સર દૂર થાય છે મને ખબર છે એટલા માટે, કારણ કે મારા દાદીમાં બોલતા હતા એટલે મારી મમ્મી બોલતી હતી, મારી મમ્મી બોલે છે એટલે હું બોલું છું. એની પાછળ કોઈ ક્લિનિકલ રિસર્ચ છે, કોઈ સાયન્ટિફિક એવિડન્સ છે, કોઈ પુરાવો છે? નથી. દુનિયા જે ના જોઈ શકી એ આ મહાનાયકે જોયું અને એના ઉપર એને રિસર્ચ કરવાનું શરૂ કર્યું. એક આયુર્વેદની જડીબુટ્ટીઓના મૂળમાં ગયા, એના મોલિક્યુલ્સ કાઢ્યા. હવે આપણી આ જે વસ્તુ છે એ પ્રસ્તુત કેમ છે એની તમને એક વાત કરું. 1981 ની અંદર જર્મનીની અંદર એક ટેસ્ટ થયેલો. એ લોકોએ 200 એકર જમીન એક્વાયર કરી, એ જમીનની અંદર પ્લોટ પાડ્યા.
અને એ પ્લોટની અંદર એ લોકોએ ચોક્કસ પાક ઉગાડ્યા. આ પ્લોટની અંદર આ પાક ઉગાડ્યો, આ પ્લોટની અંદર આ પાક ઉગાડ્યો, આ પ્લોટની અંદર આ પાક ઉગાડ્યો. એનું હાર્વેસ્ટિંગ કર્યું, પાક ઉગી ગયા એનું હાર્વેસ્ટિંગ કર્યું, પછી એની ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ એ લોકોએ ઇવેલ્યુએટ કરી. એ આખો ડેટા મારી પાસે છે. હું વાત કરું જર્મનીની 1981. એ ડેટા કાઢ્યો કે આની અંદર આટલી 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 વસ્તુ છે. 15 વર્ષ પછી એટલે 1995 ની અંદર એ જ જમીનની અંદર એ જ પ્લોટની અંદર એ જ પાક ફરી ઉગાડ્યા અને ફરીથી એનું હાર્વેસ્ટિંગ કરીને એની ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ કાઢી. 15 વર્ષનો ડિફરન્સ તમે માની નહીં શકો. કમ્પ્લીટ રિવર્સલ. અને અમુક ન્યુટ્રિશન માઇનસમાં જતા હતા. હું તમને જર્મનીની વાત કરું છું. અને 1995 થી આજે 2011 ચાલીએ છે, બીજા 100 વર્ષ આગળ ચાલીએ છે. આજે જો પાક ઉગાડો તો એની અંદર શું છે એની ખબર છે. અને જર્મનીમાં થયું એ ટેસ્ટ કદાચ જો ઇન્ડિયામાં થયું હોત તો આ પરિસ્થિતિ કદાચ એના કરતા પણ વધારે વર્ષો, એના કરતા પણ વધારે. તો આ બધાનું કારણ શું? તમને એક બીજો દાખલો આપું માટે હું તમને કહું કે 100 સફરજન તમે લો, એની અંદર 26 નો ઓવરઓલ કોઈ પણ વેજીટેબલ હોય ફ્રૂટ હોય, ઓવરઓલ 26% પીડીડ નું પ્રમાણ છે. ડિસીઝ કેમ ડિસીઝ થાય? કેન્સરના 10% છે, એ 10 માંથી 60 લોકોને તો બિચારા એ લોકોએ તમાકુની સામે કોઈ દિવસ નથી જોયું, એવા લોકોને કેન્સર છે. વ્યસનવાળા ફક્ત 3 જ લોકો છે. દર વર્ષે આપણે 9 લાખ કરતા વધારે કેન્સરના પેશન્ટ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. કેમ? એનું કારણ એ છે કે ઉંમરને તમે જે ઇન્ટેક કરીએ છીએ એ આપણા સેલને જે વસ્તુ અનુકૂળ નથી આવતી એ વસ્તુનો ઇન્ટેક કરીએ છીએ. આ 30 વર્ષ પહેલા ઉંમરને તમે જે સફરજન ખાતા હતા અને સફરજન ખાવાથી મને તમને જે પ્રોપર્ટી મળતી હતી આજે મળતી નથી. એટલે 20 વર્ષ પહેલા જે સફરજન ખાતો હતો હું અને જે વસ્તુ મને મળતી હતી એટલી વસ્તુ ખાવા માટે આજે મારે 20 સફરજન ખાવા પડશે. કેટલા? 20 સફરજન. હું જ્યારે 20 સફરજન ખાઈશ ત્યારે એક સફરજનની વેલ્યુ મેળવીશ. એનો અર્થ એ થયો કે બાકીના 19 સફરજનનું કેમિકલ પણ મારે લેવાનું છે. તો આ ડોક્ટર સાહેબે શું કર્યું? આપની જે એક આયુર્વેદની હર્બ્સ હતી એના મોલેક્યુલ સુધી ગયા, મોલેક્યુલ એક્સટ્રેક્ટ કર્યા. મોલેક્યુલ એટલે પ્યોર. અને આપણી પાસે પ્લાન્ટ છે, 2 પ્લાન્ટ છે આપણા, અને એ ટેકનોલોજી પણ આપણી પેટન્ટેડ છે. સુપર ક્રિટિકલ ફ્લુઇડ એક્સટ્રેક્શન. સેમી ગેસિયસ ફોર્મ સુધી એને પ્યોર કર્યા મોલેક્યુલ્સને. એટલે એ મોલેક્યુલ્સ તમે લીધો એટલે તમે એક મોલેક્યુલ તમે તમારી જીભ પર મૂકો, એનો અર્થ એ થયો કે એ જે તે વસ્તુની 100% પ્રોપર્ટી એના પ્રોપર ફોર્મની અંદર તમારા બોડીનું હોય કે જે તમારો સેલ એક્સેપ્ટ કરવાનો છે, જે તમારો સેલ એક્સેપ્ટ. આવી એક બે નહીં, ટોટલ 203 પેટન્ટ્સ એમણે ફાઇલ કરી. એમાંથી 70 પેટન્ટ્સ આજે આપણે મેળવી લીધેલ છે. આ હું એ કંપનીની વાત કરું છું કે 11 વર્ષ પહેલા તમે બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ટીવીમાં જોયેલા હશે કે હળદરની પેટન્ટ ઇન્ડિયાના હાથમાંથી ગઈ. એ પેટન્ટ લેનાર અમેરિકન કંપની સબિન્સા કોર્પોરેશન, એ અમેરિકાની કંપની છે પણ એની 76% ઇક્વિટી અહીંયા બેંગ્લોરમાં છે. અને એ કંપનીની 6 ફેક્ટરીઝ અને લેબોરેટરીઝ પણ ઇન્ડિયામાં છે. એટલે આ ઇન્ડિયન મલ્ટીનેશનલ છે. હું એ કંપનીની વાત 70 પેટન્ટ્સ જ્યારે લીધેલા હોય, હું તમને ઇન્ટરનેશનલ યુએસ ઇન્ટરનેશનલ પેટન્ટની વાત કરું છું. ઇન્ટરનેશનલ પેટન્ટ જ્યારે લેવાનું હોય ત્યારે 2.5 કરોડ રૂપિયાની ઓફિશિયલ ફી છે. 4 થી 5 વર્ષનો સમયગાળો લાગે એના ક્લિનિકલ એને પ્રૂવ કરવા માટે. અને 83% જ્યારે સક્સેસ મળે ત્યારે પેટન્ટ મળતી હોય, પણ પેટન્ટ મળતા પહેલા પણ 6 મહિના 180 દિવસ રાહ જોવાય. જાહેર થાય કે આ વસ્તુ છે, આ રીતે નીકળે છે, આટલા એના ફાયદા છે, કાટ શકો તો કાટો. 6 મહિનાની અંદર જો કોઈ આવીને આપણી વસ્તુને કાપે તો વસ્તુ સુધી, કોઈ ના કાપે તો આપણી પણ આપણને પેટન્ટ મળે. આવી 70 પેટન્ટ જ્યારે આપણે લઈને બેઠેલા છીએ, એનો અર્થ એ થયો કે આજે આપણે જેવી રીતે પેરાસિટામોલ 250 mg પર ફિક્સ થયેલી છે, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ છે, એ રીતે આયુર્વેદા પણ હવે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ થયેલું છે. અને વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની અંદર આજે આયુર્વેદાનું નામ પડે તો ત્યાં આગળ ફક્ત 2 નામ હોય, સબિન્સા કોર્પોરેશન અથવા ડોક્ટર મોહમ્મદ નજીર. તો જ્યારે આના વિશે આપણે વાત કરવાના છે, કંપની શું છે, કંપનીના પ્રોડક્ટ શું છે અને હેલ્થ શું છે, આ બધી બાબત બોલવા માટે હું ક્વોલિફાઈ નથી. તો એના માટે એકદમ કોમ્પિટન્ટ પર્સનાલિટી આજે આપણી વચ્ચે છે.
એમનું નામ છે ડોક્ટર જયેશ પટેલ, કે જેઓ મુંબઈથી છે. જે એમની માસ્ટરી છે. તમારા સીટી સ્કેન રિપોર્ટની અંદર કંઈક આવતું હોય કે ના આવતું હોય એ તમને જોઈને એમ કે આનું નામ છે ભરતભાઈ, મને એવું લાગે છે કે તમે આ જરા શરૂ કરો તો સારું છે. 3-4 અઠવાડિયા પછી મને ફોન કરજો. અને 100 માંથી 98 પેશન્ટ એમને એવા હોય કેમ કે ડોક્ટર સાહેબ આઈ એમ ઓકે નાઉ. તેવા જયેશભાઈને સાંભળવા એ મારા માટે પણ ભાગ્યની વાત છે અને હું નિરાતે એમને સાંભળવાનો છું. આપણે બધાએ એમનું આજે શોષણ કરવાનું છે લિટરલી, કારણ કે જલ્દી આપણા હાથમાં આવે એવા નથી. તો એ જયેશભાઈને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ, તાલીઓના ગગડાટથી વધાવી દઈએ. आई थिंक माइक की तो जरूरत पड़ेगी नहीं. पीछे तक आवाज आ रही है? माइक लिया जाए. ओके. देखिए फिलहाल प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग स्क्रीन के बिना काम चलाएंगे. कुछ वजह से प्रोजेक्टर का अरेंजमेंट नहीं हो सका है. मितेश भाई ने बहुत ही अच्छी प्रस्तावना दी है. प्रस्तावना में सबसे अच्छी चीज मितेश भाई ने ये बताई है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि विजन होना बहुत जरूरी है. विजन का मतलब ये है कि हम बहुत कुछ आने वाले भविष्य के बारे में आज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको विजन कहते हैं. तो दुनिया में जिन लोगों ने भी क्रांति की है वो विजन वाले लोगों ने की है. उसके कुछ एग्जाम्पल मितेश भाई ने आपको बताया. मितेश भाई ने एक बुक का जिक्र किया था, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन. ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है. बड़े मॉल में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ एक बुक स्टॉल होता है, वहाँ मिलती है. उस बुक के पहले पन्ने पे लिखा है, ये वो बुक नहीं है, उस बुक के पहले पन्ने पे लिखा है जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है. ऐसा क्लियर उसके पहले पन्ने पे लिखा है. उसमें कई दवाइयों के साइड इफेक्ट वगैरह के बारे में लिखा है. तो इस तरह बहुत सारी जानकारी वहां दी गई है. तो ये साइड इफेक्ट की खोज आज से चल रही है ऐसा नहीं है. जो एडवांस कंट्रियों ने इस दवाई की खोज की उसी कंट्रियों ने ये खोज निकाला कि इसकी साइड इफेक्ट भी क्या है. जब एक कंपनी कोई दवाई के बारे में रिसर्च करती है और उस रिसर्च में ये ढूंढा जाता है कि दवाई क्या काम करती है, लेकिन साइड बाय साइड उससे होने वाली साइड इफेक्ट भी ढूंढी जाती है. कोई दवाई बड़े जोर शोर से आती है, बाद में पता चलता है कि दवाई की साइड इफेक्ट है, उसको बैन करना पड़ेगा. ऐसा टाइम टू टाइम पता चलता है. तो दवाई की इफेक्ट साइड इफेक्ट सब ढूंढी जाती है. आगे खाली आ जाइए. तो इस तरह लगातार रिसर्च चलते रहता है. तो इसी रिसर्च के दौरान एक विजन वाले आदमी ने, कुछ लोग आगे आना चाहे तो आ जाइए, ताकि पीछे की सीट आ जाइए, आगे आ जाइए, फ्रंट लाइन में 4 सीट आती. ऐसा रिवॉल्यूशन कि जिसको अगर आज समझेंगे, उसके ऊपर आप सोचेंगे और उसके ऊपर अगर अमल करते हैं तो 2 चीज यहाँ क्लियर आज आप सीख के जाएंगे. पहली चीज, अगर आज आप अच्छे हो हेल्दी तो कल भी अच्छे हेल्दी रहोगे. और आज अगर आप बीमार हो तो बीमारी से वापस लौटोगे. 2 चीज यहाँ समझनी है. अब इसको समझने के पहले हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में. कंपनी का नाम है सामी डायरेक्ट. सामी डायरेक्ट इसकी मेन मदर कंपनी है सबित्सा कॉर्पोरेशन, जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है. मॉलिक्यूल की ये पहली कंपनी है. मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे. सबित्सा कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर है 11,700 करोड़ रुपया. मॉलिक्यूल का टर्नओवर कितना है? 11,700 करोड़. हिंदुस्तान लीवर की बात मैं नहीं कर रहा हूं. यूनिलीवर, जिस कंपनी ने 2 साल 140 कंट्री में माल बेचकर इतना टर्नओवर किया था, वैसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं. इस कंपनी की कहीं भी खुद ही की जगह है, किराए की जगह कहीं भी नहीं है. जहां जहां कंपनी ने जगह ली है, खरीद ली है, कहीं भी किराए पे नहीं है. बम्बई में भी कंपनी की एक बहुत ही अच्छी ऑफिस है अंधेरी हाईवे पे.
रिसर्च लैब है। बेंगलोर के अंदर 16 एकड़ में उनकी जस्ट एक लेबोरेटरी है रिसर्च की, 16 एकड़ में, पिनिया में। इसी तरह हैदराबाद में 1700 करोड़ की एक फैक्ट्री है एक्सट्रैक्ट निकालने की, दुनिया की पहली और आज भी पहली कंपनी है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट निकालने की टेक्नोलॉजी आज तक सबिंसा कॉर्पोरेशन के अलावा किसी और के पास नहीं है। ऐसे प्रोफाइल की कंपनी है। उसके बाद बात करेंगे प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट ऐसे यूनिक है कि रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और एविडेंस है। आज तक मार्केट में कंपनियां बहुत आई, किसी भी कंपनी ने एविडेंस नहीं दिए है। बातें की है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने R&D किया है, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी किसी को खोल के पेपर बताया नहीं है। यहाँ पर हर चीज के आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। इस तरह रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और 150 प्रोडक्ट के लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया था। 79 पेटेंट कंपनी ले चुकी है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट को पेटेंट लेने के लिए आप क्लेम करते हो कि हमारे इस प्रोडक्ट से ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कर्कुमिन सी। कर्कुमिन सी क्या है प्रोडक्ट के वक्त में बताऊंगा। क्लियरली मेंशन किया गया है एंटी कैंसरस है, केमोथेरेपी रिप्लेसमेंट है, ऐसा सब रिसर्च करके पेपर दिया गया है। ये सब पेपर ऐसा छाप सकते हैं अगर उसके कहने से वैसा होता है तो। अगर ये कैंसर ठीक करता है तो ठीक करता है। प्रूव करना पड़ता है कि 100 केस अगर आप हाथ में लेंगे तो 83 केस अच्छे होने चाहिए। अगर 83% के नीचे रिजल्ट आया तो पेटेंट नहीं मिलती है। तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचेंगे वो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। जैसे मित्र मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि हम जो भी खाएंगे प्योर नहीं है, और यहाँ जो भी मिलेगा प्योर है। आपका सेल्स उसको इजीली वेलकम करता है, इजीली वेलकम करता है। ऐसे प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ऐसे हैं कि रिसर्च वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कि प्लान। कंपनी ने पब्लिक के लिए एक अपॉर्चुनिटी रखी है, बहुत ही अद्भुत अपॉर्चुनिटी रखी है। इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि अगर हम चाहे तो एक बिजनेस भी कर सकते हैं इसमें। अब ये कंपनी मल्टी लेवल में क्यों आई, इसके पीछे थोड़ा सा इतिहास है। इतिहास ऐसा है कि 2002 में बिल क्लिंटन यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, वो धन्यवाद देता है MLM इंडस्ट्री को, MLM के लोगों को। ऐसा क्यों? इसलिए कि MLM की वजह से अमेरिकन लोग सभ्य बने। मैं जब यूपी गया था और स्टेशन पे ट्रेन आने के लिए वक्त था, तो कुछ लोग साथ में हम लोग थे, डिस्कशन चल रहा था। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि MLM में लोग सभ्य हो जाते हैं। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ एक आदमी को सामने। मैंने कहा देखो मैं एक आदमी को सामने देख रहा हूँ, उनकी ओर इशारा किया, यानी कि इसमें बहुत कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि अमेरिकन की हेल्थ सुधरी, लोग सभ्य बने और अमेरिका की इकोनॉमी सुधरी। क्योंकि जो कंपनी अमेरिका से शुरू होती है और पूरे दुनिया में फैलती है, और जब आप दवाई खाते हो तो पैसा कहाँ जाता है? अमेरिका जाता है। जब ये बात उन्होंने सुनी तो उनको सरप्राइज हुआ कि ये जो कंपनियां हैं पूरे दुनिया से पैसा कमा रही है, दुनिया को हेल्प दे रही है, उसको मॉलिक्यूल तो मैं ही देता हूं, और पूरे दुनिया का पैसा हमसे मॉलिक्यूल लेके ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, चर्निंग करके माल बेचा जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इसको प्योर फॉर्म में लॉन्च करेंगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये कंपनी की हेड ऑफिस बेंगलोर में है। ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी शुरुआत, ये MLM हिस्से की शुरुआत इंडिया से हुई है। इंडिया से हुई है। आपको ख्याल होगा 5 मई 98 को एमवे कंपनी इंडिया में आई। जब वो कंपनी इंडिया में आई उस वक्त एक आदमी को विजन था और उस आदमी का नाम था कांति गाला। उस लॉन्चिंग के पहले वो अपनी फैमिली के साथ वहां बच्चों की पढ़ाई को छुड़ाकर यहाँ आ गए और काम शुरू किया। आज आई थिंक ऑलमोस्ट 3 फुट के नीचे है। एक वक्त आएगा, क्रांति की ये शुरुआत है, क्रांति की ये शुरुआत है और ये पहली मीटिंग है सामी की। यहाँ पर आने वाले वक्त में
जो रिजल्ट लोग पाएंगे उसके हिसाब से ये कंपनी गुजरात के गांव-गांव में फैल जाएगी, क्योंकि आगे प्रोडक्ट को समझेंगे, सुनेंगे, इसके रिजल्ट को देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा। तो उस गांव-गांव में पहुंचाने वाले इंसान आप होंगे, लेकिन बात वहां तक की नहीं है। ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, एक दिन ये कंपनी अमेरिका में भी लॉन्च होगी, इंडियन एमएलएम अमेरिका में लॉन्च होगी। तो जब वहां लॉन्च होगी तो जिसको विजन है हम पहले जाएंगे और वहां शुरू करेंगे तो वहां के पैसे यहाँ आएंगे। तो सोच, बड़ी लंबी सोच के साथ इस कंपनी की शुरुआत की गई है, यानी कि वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन है ये, और एक बहुत बड़े लेवल पे कंपनी जाने वाली है। शुरुआत कंपनी की ये है कि महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जब लास्ट मंथ की 9 तारीख से इसकी मूवमेंट शुरू हुई है, लास्ट मंथ की 9 तारीख से, ये 9 तारीख को 1 महीना पूरा होगा। इस मूवमेंट में जो शुरू में जुड़ेंगे, जिसको भविष्य दिखता है, जिसको विजन है, वो डेफिनेटली बहुत आगे जाएगी, क्योंकि सक्सेस का स्लोगन ये है, दुनिया जहां जाने वाली है ऐसा हमको लगता है तो हमको पहले खड़े हो जाना चाहिए, बाद में लाइन पीछे से शुरू होती है। जैसे अमिताभ बच्चन दीवार में कहते हैं कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है कि नहीं? उस डायलॉग को कभी मत बोलिए, उसमें बहुत मीनिंग है, बहुत दम है। यानी कि कंपनी ने प्लान भी बहुत अच्छा बनाया है। तो हमने क्या देखा? प्रोफाइल देखी, प्रोडक्ट देखा, प्लान के बारे में बात की, लेकिन चौथी चीज है वो है पब्लिक, यानी कि मैं, आप और हम सब लोग। अगर ये 3 चीज अच्छी है तो मतलब क्या है? कुछ नहीं, जब तक हम लोग नहीं है। तो हम इसको खाएंगे, यूज करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, तो ये रिवॉल्यूशन जो खोज एक इंसान ने की है, उस खोज को हम हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कोने कोने तक हमारे जरिए पहुंचेगी, तो डेफिनेटली हमारी भी कंडीशन, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों सुधरती जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे, ये कहानी है 1988 की। 1988 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, लेकिन उसके पहले 84 में अमेरिकन गवर्नमेंट चिंतित हो गई, पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी बहस हो गई कि साइंस आगे बढ़ रहा है या बीमारी आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ी बहस हो गई। तो पता चला डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ रहे हैं, जबकि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट कम होने चाहिए। तो जिस समय आज हम इंडिया में मेडिकल में जितने एडवांस है, उस वक्त 84 में अमेरिका उतना एडवांस था। तो वहां पे बीमारियां पैदा हो रही थी, कैंसर, ब्लॉकेज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, वैसी बीमारी जो इंसान के अंदर पैदा होती है लेकिन वो दूसरे में नहीं पास होती है, सेल्फ जनरेटेड डिजीज, लाइफस्टाइल बहुत सारे कारणों से हुई। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस वक्त के 2 बार नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर लाइनस पॉली को अपॉइंट किया। डॉक्टर लाइनस पॉली ने अपनी एक टीम के साथ 100-150 साइंटिस्ट की टीम के साथ एक रिसर्च कंडक्ट किया, और रिसर्च कंडक्ट करने के बाद उन्होंने 1988 में वो रिपोर्ट को पब्लिश किया, और उन्होंने पहली बार उनकी टीम ने दुनिया को बताया कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है। आज जो बोलते हैं वो डॉक्टर लाइनस पॉली ने सबसे पहले बताया था, 60 ट्रिलियन सेल से बॉडी बनी है। लेकिन 88 से पीछे अगर 30 साल और पीछे अगर आप चले जाते हैं, 30 ईयर, यानी कि आप 60 या 55 के करीब जाते हैं, 1955, उस वक्त साइंस को सेल्स के मैकेनिज्म के बारे में बहुत कम ज्ञान था। 88 में जब पता चला कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी है, उसके बाद इस सेल्स के ऊपर और रिसर्च आगे बढ़ने लगी, डीएनए की खोज हुई, बहुत सारी खोज होती रही। तो उसको उस टीम ने बताया कि ये ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल की है, तो ह्यूमन बॉडी की लाइफ 120 साल है। इंसान 120 साल जी सकता है। 120 साल जीने के लिए उसको चिकन, मटन, सब्जी, पिज्जा, बर्गर की जरूरत नहीं है। उसको चाहिए 3 चीज, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। शुद्ध हवा की अगर बात करें तो आज से 50 साल पहले एटमॉस्फेयर में 38% ऑक्सीजन था। आज से 20-22 साल पहले 28% ऑक्सीजन लेवल था।
आज 21% ऑक्सीजन लेवल है, 21% सोचिए। पानी की बात करें, पानी का मतलब प्योर पानी होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं केमिकल पानी में ही पास होता है, नहीं तो जमीन में डालेंगे तो भी पानी में कहीं मिक्स होता है। पानी का मतलब सिर्फ पानी होता है, H2O, ना उसमें मिनरल की जरूरत है, ना कुछ प्योर वाटर चाहिए जिसको H2O कहते हैं। और तीसरी चीज, इसको 120 पोषक तत्व चाहिए, 120 न्यूट्रिशन चाहिए, तो इंसान 120 साल जी सकता है। क्या आप सब लोगों को मालूम है कि पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी से हेल्थ खराब होती है? पता है कि नहीं? बिल्कुल, आप कहोगे यस, मैं भी कहूंगा यस, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। जो हमें चाहिए हमारे शरीर को, पाव भाजी, पिज्जा से हेल्थ इसलिए खराब होती है कि हमारे शरीर को जो चाहिए वो चीज उसमें नहीं है। जो पोषक तत्व हम चाहते हैं वो पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर में नहीं है, इसलिए हेल्थ खराब होती है। तो हमें पोषक तत्व चाहिए। तो इस तरह एक बहुत अलग लेवल पे इस सोच की शुरुआत हुई। तो डॉक्टर लाइनस पॉली का रिपोर्ट उस वक्त एक न्यूज़पेपर में छपा। जिस तरह हम सुबह उठकर चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी तरह डॉक्टर मोहम्मद माजिद न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनको उस वक्त भविष्य दिखा था, जो दिखा था आज उन्होंने किया, और आज जो उनको दिख रहा है वो कल होने वाला है। आज जो उनको दिख रहा है कल होने वाला है। तो फिर हम ये देखेंगे कि ये डॉक्टर मोहम्मद माजिद कौन है, कैसे इंसान है। एक ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुए थे, सामान्य फैमिली में, एक नॉर्मल कंडीशन में। स्कॉलरशिप से उन्होंने B.Com किया और अमेरिका गए। 1975 में अमेरिका गए। वहां जाके उन्होंने MS किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली, रिसर्चर बने और फाइनली साइंटिस्ट बने और जॉब कर रहे थे, एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे। अब हुआ ये 88 में गए थे, 75 में कहानी पहुंची 88 तक। 88 में उन्होंने जब न्यूज़पेपर हाथ में लिया और डॉक्टर लाइनस पॉली का रिपोर्ट जो पेपर में पेज में छपा था उसको पढ़ रहे थे। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, पढ़ते रहे। साइंटिस्ट तो थे ही, और उन्होंने सोचना शुरू किया। उसने सोचा चलो यार मैं अमेरिका की हवाई बदल दूं, फिर सोचा नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, फिर सोचा चलो पानी बदल दूं, नहीं कर सकता, फिर फाइनली बचा न्यूट्रिशन। उसने सोचा हाँ इस पे न्यूट्रिशन पे मैं कुछ कर सकता हूँ। जब उनको क्लिक हुआ मैं कुछ कर सकता हूँ और इसका भविष्य कुछ और है, वो दिन उनको क्लिक हुआ कि मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, इंडिया आए और उन्होंने स्टडी शुरू की। यहाँ घूम के जो लोग दीर्घायुष जीते थे, जो लोग हेल्दी जीते थे, वो क्या खाते हैं, कौन सी जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, ये रहस्य उनको प्राप्त हुआ। तो उन्होंने 1988 में सबीन शाह कॉर्पोरेशन की USA में स्थापना की, अमेरिका में कंपनी खोली और यहाँ से हर को एक्सपोर्ट करने लगे। रिजल्ट आने लगा, डिमांड बढ़ी। 91 में जब काफी पैसा कमाया तो उन्होंने एक्सट्रैक्ट की फैक्ट्री लगाई। सिर्फ 3 साल में कारोबार इतना बड़ा कि एक्सट्रैक्ट की फैक्ट्री लगाई, और वो फैक्ट्री उन्होंने बेंगलोर में लगाई। उन्होंने बेंगलोर से अपना कारोबार शुरू किया, क्योंकि 75 में गए थे, 88 के बाद भी वहां रहे, लेकिन उन्होंने कभी ग्रीन कार्ड नहीं लिया। अमेरिका से बुक पब्लिश हुई है, स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन। अमेरिका से पब्लिश एक बुक है, उसके अंदर लिखा है कि इस दुनिया में 107 पीपल ऐसे हैं वो ब्रेन ड्रेन के शिकार नहीं हुए। ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या है कि आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो, एक अच्छी सैलरी पा रहे हो, उसके बावजूद आपको लगता है कि आपकी कदर नहीं हो रही है, तो आप चले जाते हो फॉरेन कंट्री में, वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है, साल 2 साल में एक बार आते हो, फिर 5 साल में आते हो। होता यह है कि कई किस्से में माँ बाप गुजर जाते तो भी नहीं आते हैं। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि वहीं सेटल हो गए। लेकिन उस बुक में लिखा है 107 इंसान ऐसे हैं जो उस ब्रेन ड्रेन के शिकार नहीं हुए। उसमें से एक है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। उसमें जिक्र किया गया है कि इन्होंने इतना बड़ा कारोबार किया, लेकिन उन्होंने इंडिया रहना पसंद किया, कभी ग्रीन कार्ड नहीं लिया,
कभी भी ग्रीन कार्ड लेना पसंद नहीं किया और वो इंडियन ही बने रहे। तो 91 में उन्होंने एक्सट्रैक्ट पे काम करना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला काली मिर्ची में से। काली मिर्ची यानी ब्लैक पेपर, उसमें से निकाला। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है उसको समझने के पहले आयुर्वेदिक क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। आयुर्वेद क्या है? हमको पता है आयुर्वेद, हमको पता है एलोपैथी, हमको पता है होम्योपैथी, लेकिन जिस कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं ये एक अलग साइंस है। ये एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये साइंस, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद के लिए इंडिया के अंदर हम जानते हैं, चरक को जानते हैं, सैंडू को जानते हैं, ऐसी कंपनियों को जानते हैं। ये कंपनियों ने क्या किया है, हमारे प्राचीन ग्रंथ चरक, सुश्रुत, वाग्भट वगैरह ग्रंथों में जो जड़ी बूटियों का वर्णन किया है उसी को रॉ फॉर्म में ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, चर्निंग करके अलग अलग फॉर्मूला बनाकर बेचा है। लेकिन वो चीज कैसे काम करती है इसके ऊपर किसी ने नहीं सोचा, लेकिन यही एक महान इंसान है, उसने इसके ऊपर सोचा और सिर्फ सोचा नहीं, काम भी शुरू किया। तो उन्होंने काली मिर्ची में से एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट का नाम दिया बायोप्रीन। बायोप्रीन नाम दिया। एक्सट्रैक्ट यानी वो तत्व जो आपके बॉडी में जाएगा, सेल्स एक्सेप्ट करेगा, उसमें मिक्स हो जाएगा, बाकी कोई मिलावट नहीं रहेगी, प्योर फॉर्म। आयुर्वेद में वर्णन है काली मिर्ची के बारे में कि उसको खाने से हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन संस्कृत के पुराने श्लोक को आज भी कोई समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने ढूंढा ये कि ये बायोप्रीन जो है बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। जिस गोली का आपको विटामिन की गोली का 1 रुपया फायदा होने वाला है, अगर उसके अंदर बायोप्रीन भी मिक्स है कुछ मात्रा में, तो फायदा आपको 1.5 रुपये का होगा। बायो एनहांसर है, आपको फायदा ज्यादा होता है। इसलिए इस कंपनी के जो भी मॉलिक्यूल है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट में एक खास मात्रा में काली मिर्ची का भी एक्सट्रैक्ट बायोप्रीन मिलाया हुआ है। जब आप इस कंपनी की फॉर्मूला देखोगे, मॉलिक्यूल की हर फॉर्मूला में बायोप्रीन मिक्स है। इस तरह उन्होंने बायोप्रीन के ऊपर पेटेंट लिया। बायोप्रीन नाम भी इसी कंपनी के साइंटिस्ट ने दिया है। उसके बाद उन्होंने लीन गार्ड फोर्सलीन जो है उसके ऊपर पेटेंट लिया। दुनिया की ये एकमात्र कंपनी है जिसकी दवा से वजन घटता है तो घटता है, उसके ऊपर पेटेंट लिया और थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला। उसके बाद 99 में न्यूज आया था कि हल्दी के ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। लोगों को पता चला न्यूज में कि सभी कॉर्पोरेशन ने हल्दी पे कब्जा कर लिया, वर्ल्ड वाइड पेटेंट ले ली। तो लोग चिंता में हो गए कि हल्दी भी हमारे हाथ से गई। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये सारी रिसर्च बेंगलोर में हुई थी, हल्दी हमारे पास ही रह गई। वर्ल्ड वाइड पेटेंट इसलिए दिया ताकि ये नहीं लेते तो कोई और ले लेता था। और पेटेंट के लिए जो रिसर्च की, ये वॉल्यूम 2 है, मेरे पास 3 वॉल्यूम है, लेकिन इसके टोटल 15 वॉल्यूम है। कर्कुमिन सी क्या है हम आगे बताएंगे। 94 में कंपनी को प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा के द्वारा एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला। इसके अलावा इस कंपनी के पास ISO 9001 9002 नहीं, ISO 22000 है। पूरे हिंदुस्तान में ISO 22000 किसी के पास नहीं है। ये किसको मिलता है कि जो अपने बीज से लेकर रॉ मटेरियल को उगाने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही छत्र छाया में होता है, उसी को ये मिलता है। कई कंपनी क्या करती है, कुछ माल इंपोर्ट कर लेती है, कुछ सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर लेती है, किसी के पास बनवाती है, कहीं बेचती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे उगाने से लेके फाइनल पैकिंग तक, पैकिंग का मतलब पैकिंग, बॉक्स भी अंदर बनता है, बोतल भी अंदर बनती है, लेबल भी अंदर ही बनता है, हर चीज एक ही छत्र छाया है। तो नासा सिर्फ उसी कंपनी का माल एक्सेप्ट करती है जिसके पास ISO 22000 है।
इसके अलावा इस कंपनी के पास NABL सर्टिफिकेट है, जो इंडिया में एक फील्ड के लिए एक ही इंसान के पास होता है। अगर किसी को यहाँ से हर्ब को एक्सपोर्ट करना हो किसी भी कंट्री में, तो सामी लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट लगेगा। वो पूरे प्रोडक्शन में से एक बॉटल भेजी जाती है सामी लेबोरेटरी में, सामी लेबोरेटरी सर्टिफाइड करती है, फिर वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट उसको अप्रूव मानती है, तभी उस प्रोडक्ट को, उस ड्रग को, उस दवाई को आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी है। और ये NABL सर्टिफिकेट पिछले 7 ईयर से सामी लैब के पास ही है। जैसे अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो उसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट जो होता है वो लाल पेन लेबोरेटरी का माना जाता है। वैलिड लाल पेन का क्यों? क्योंकि लाल पेन के पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अगर उससे ज्यादा एडवांस कोई होगा तो NABL सर्टिफिकेट उससे लेके दूसरे को दे दिया जाएगा। इसी तरह सामी लेबोरेटरी के पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसलिए 7 ईयर से ये मेंटेन रखा है। अगर कोई और आएगा तो उसको दे दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कोई और आएगा? यस और नो? नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि अगर एक्सट्रैक्ट के मामले में अगर रिलायंस भी गिर जाए एक बार, तो भी इतने बड़े लेवल पे उसको डेवलप करने 100 साल लगेगा। 100 साल। क्योंकि कंपनी के जो साइंटिस्ट है डॉक्टर मोहम्मद माजिद, आपको बताया साइंटिस्ट लोग आधे पागल होते हैं, मालूम है कि नहीं? साइंटिस्ट लोग आधे पागल होते हैं, ये डॉक्टर मोहम्मद माजिद पूरे पागल है। क्योंकि आधे पागल तो 120 है इनके पास, जिनकी सैलरी 6 लाख से 8 लाख रुपया है। ऐसे 120 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, उस बुक में लिखा है जो अमेरिका से पब्लिश हुई कि 120 साइंटिस्ट इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो बहुत हाई सैलरी पीपल है। यानी कि ऐसे बहुत बड़े प्रोफाइल की कंपनी है जिसको हमने देखा। हैदराबाद में 1700 करोड़ की एक फैक्ट्री है। हाँ, एक चीज रह गई। हैदराबाद में 1700 करोड़ की एक्सट्रैक्ट निकालने की फैक्ट्री है, जो दुनिया की सबसे बड़ी है। लेकिन एक गवर्नमेंट से बुक पब्लिश हुई है, नॉर्थ गवर्नमेंट से पब्लिश हुई है। इसमें गवर्नमेंट के आंकड़े पे लिखा है कि इंडिया के अंदर ये कंपनी, गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया में सामी डायरेक्ट कंपनी 46,000 एकड़ जमीन में हर्ब कल्टीवेट करती है। और एक कंपनी टीवी पे ऐड देती है कि हम नीदरलैंड के अंदर 6 एकड़ जमीन में कल्टीवेशन करके पूरे दुनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उस कंपनी का एक भी इनवॉइस, वो कंपनी नीदरलैंड से इंडिया में माल आया, ऐसा एक भी इनवॉइस किसी को दिखा नहीं सकती है, क्योंकि वो कंपनी खुद कहती है। लेकिन यहाँ कंपनी नहीं कहती है, यहाँ गवर्नमेंट कहता है कि सामी डायरेक्ट कंपनी 46,000 एकड़ में कल्टीवेशन करती है। कहानी वहां खत्म नहीं होती है। इनके मॉलिक्यूल की डिमांड इतनी है कि वियतनाम के साथ एक अकेला आदमी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनके कंट्री में बैठ के इंडियन फ्लैग लगा के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है और उन्होंने कहा आप यहाँ आइए, हम आपको जमीन देते हैं, आप यहाँ हर्ब को कल्टीवेट करिए, हमें सिखाइए, फिर मॉलिक्यूल निकाल के आप हमको दो, क्योंकि हमें मालूम है कि आप उतना मॉलिक्यूल जितना हमको चाहिए आप दे नहीं पाएंगे। तो टोटल 86,000 एकड़ जमीन में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कंपनी कल्टीवेशन करती है हर्ब को, और प्योर फॉर्म में हर्ब पूरी दुनिया को मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। इतना पावरफुल ये मॉलिक्यूल होता है। अभी क्या स्क्रीन नहीं है हमारे पास, लेकिन ये ISO 22000 इंडिया में एकमात्र ये कंपनी के पास है। चलिए अभी हम लोग आएंगे प्रोडक्ट पे। इस सब बारे में देखा, अभी हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट जो है ये सिर्फ इसीलिए खोला हूं प्रोडक्ट के सीक्वेंस के लिए, बाकी सारे प्रोडक्ट तो मुझे याद है बोलने के लिए, लेकिन सीक्वेंस में चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे।
उसकी बात में जाते जाते इस पेपरों की भी बात साइड बाय साइड होती रहेगी। सबसे पहले इस कंपनी का प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हमारा दुश्मन हमारा पड़ोसी या और कोई नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे शरीर में पैदा होने वाला एक केमिकल, साइंस जिसको फ्री रेडिकल कहता है। फ्री रेडिकल, अगर हम बहुत डिटेल में जाके बात करें फ्री रेडिकल क्या है, तो फ्री रेडिकल के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो सर्च करता है। सर्च करते करते अगर वो आर्टरी के एंडोथेलियल सेल से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद स्टेबल हो जाएगा, आर्टरी के सेल अनस्टेबल हो जाएंगे। ऐसे अनस्टेबल सेल कभी भी ऑक्सीडाइज होते हैं। ये क्रिया 30 साल के बाद भी चलती रही तो आर्टरी हार्ड होती है। ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर आप वडोदरा स्टेशन के पास चले जाइए, 2 डॉक्टर को लेके कैंप लगा लो और लोगों का बीपी चेक करना शुरू करो। उस इंसान का चेक करना है जिनकी उम्र 30 क्रॉस हो चुकी है और 35 के अंदर है। ऐसे 100 लोगों का बीपी चेक करिए। जिन्होंने बीपी कभी चेक नहीं किया हो तो आपको सरप्राइज होगा, 100 में से 45 लोग हाई बीपी के मरीज मिलेंगे और उसे पता नहीं उसे हाई बीपी है। इन दिनों छोटी छोटी उम्र वाले को बीपी हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल अटैक। यही फ्री रेडिकल अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो उसको ऐसे स्वरूप में कन्वर्ट कर देता है कि वो आर्टरी में चिपकता है और ब्लॉकेज होता है, जिसको कोरोनरी हार्ट डिसीज कहते हैं। और यही फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सेल्स के डीएनए पे अटैक करता है तो डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, मोटर न्यूरॉन, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, सादी भाषा में कहो तो वैसी बीमारी जिसके लिए साइंस के पास न कारण है और न ही इलाज है, ऐसी बीमारी पैदा होती है। ये फ्री रेडिकल स्किन पे अटैक करेगा तो स्किन खराब होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले हमारी स्किन बहुत अच्छी थी, अब वैसी नहीं है। कान पे अटैक किया तो बाल जाता है। अब फ्री रेडिकल उत्पन्न होने के एक नहीं अनेक कारण है। वाटर की गड़बड़ी से होगा, पानी ठीक नहीं मिलने से, धुएं से भी होगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म से होगा, फूड से भी होगा, स्ट्रेस से भी होगा, बहुत सारे कारणों से, विटामिन डेफिशिएंसी से होगा। ऐसे अनेक कारणों की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल उत्पन्न होता है। इसलिए फ्री रेडिकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको जो इंसान मैनेज नहीं करेगा वो इंसान को बीमारी जल्दी होने के चांस है, एजिंग प्रोसेस फास्ट बढ़ने के चांस है। अगर आप फ्री रेडिकल को मैनेज करते हैं और आपका दोस्त नहीं करता है तो 20 साल आपने फ्री रेडिकल को मैनेज किया तो 20 साल बाद आप और आपके दोस्त में बहुत अंतर रहेगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 55 साल के हो जाते हैं और फ्री रेडिकल को मैनेज करते हैं तो हो सकता है आप 45 के दिखो या 10 साल छोटे दिखोगे, फिट रहोगे, बीमारी मुक्त रहोगे, आपका दोस्त उससे दूसरे डायरेक्शन में रहेगा। क्योंकि फ्री रेडिकल ही डिसीज उत्पन्न करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर साल 9 लाख कैंसर पेशेंट बढ़ रहे हैं और लेडीज को इन दिनों ज्यादा कैंसर हो रहा है। आप देखोगे कैंसर के लेडीज मरीज ज्यादा है कंपेयर टू जेंट्स। ब्लॉकेज की डिसीज बढ़ रही है, हाई बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, बीमारी आगे बढ़ रही है। तो इस तरह एक अद्भुत प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट। ये खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद एक गोली रेगुलर खानी है, रेगुलर खानी है, क्योंकि हमें वही काम करना है जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी करते हैं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी क्या करते हैं? काम नहीं करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो है उसको संभाल रहे हैं, जो है उसको संभालने का काम कर रहे हैं। वही काम हमको करना है। उनको पता नहीं है, हमको पता है कि इससे महंगी कोई आजादी नहीं है, इससे महंगी कोई आजादी नहीं है। इस पृथ्वी पे हमारे शरीर की कीमत हजारों करोड़ है, क्योंकि पैसा कितना भी हो आप स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते हैं। एक मुकाम पे जाके जो लॉस होता है बॉडी का, उस लॉस को कोई कवर नहीं कर सकता है। बिजनेस की लॉस कवर हो जाएगी। बहुत बड़ी लॉस धीरूभाई अंबानी को हुई थी
जिस दिन डिक्लेयर हुआ कि ये दुनिया के सबसे रईस आदमी है, उसके 23वें दिन उसको पैरालाइज हो गया था। रईसी काम आई? नहीं आई। तो हमें यही संभालना है इस शरीर को। अगर आपके पास 100 करोड़ है तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो 90 हो जाए, चाहोगे नहीं, लेकिन आप चाहोगे कम से कम 100 तो मेंटेन रहे, या 101 या 102 हो जाए। तो ये ऑलरेडी 1000 करोड़ है, तो इसका 900 करोड़ बनाने का चक्कर तो बंद कर देना अभी। ये 1000 करोड़ का हम 900 बना रहे, धीरे धीरे 800 बना रहे, धीरे धीरे 400 बना रहे, काउंट डाउन में चल रहे हम लोग। क्या ऐसा बिजनेस समझदारी है? बिल्कुल नहीं। हमेशा हम चाहेंगे कम से कम है उतना तो मेंटेन रहे। ईश्वर ने ये जीवन दिया है हमें अद्भुत। मनुष्य से इस पृथ्वी पे बढ़कर कोई नहीं है। मनुष्य से बढ़कर कोई है क्या? नहीं। तो इस मनुष्य जीवन को शांति से, स्वास्थ्य के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लाइफ को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले चाहिए शरीर स्वास्थ्य। गुजराती में कहावत क्या है? पहलू सूखते जाते नरियाल, અને पहलू सूखते जाते नरियाल। तो आप कम से कम अपने आप को नड़ो मत। जो भी कंसेप्ट है क्लियर कर दो, विजन को खोलना है। एंटीऑक्सीडेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो सबको देना चाहिए एक गोली। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं, ये खाना डाइजेस्ट होता है और पूरा डाइजेस्ट होता है। फाइनल उसका जो एक्सट्रैक्ट बॉडी बनाती है, बॉडी भी एक्सट्रैक्ट बनाती है। क्या गजब सिस्टम है ऊपर वाले की। और उस एक्सट्रैक्ट को कहते हैं एंजाइम। तो खाने में से जितना एक्सट्रैक्ट बनता है उस एंजाइम को, उसको कहते हैं एंजाइम। और उसका 95% पोर्शन कोएंजाइम Q10 होता है। जब तक हमारी उम्र 30 साल है या 35 है, तब तक हमारा शरीर हमारे फूड इंटेक में से 320 mg कोएंजाइम बनाता है। 30 साल की उम्र के बाद ये कम बनना शुरू होता है। कितना कम? 20 mg से लेकर 80 mg ये कम बनेगा। चाहे आप कुछ भी खाओ पियो, ये कम बनेगा तो कभी बनेगा। ये रिसर्च पूर्ण सत्य है, फिर कभी भी ज्यादा नहीं बन सकता है। अब ये कोएंजाइम क्या करता है? कोएंजाइम हमारे हार्ट के मसल्स पे काम करता है, लीवर पे काम करता है, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया पे काम करता है, डीएनए पे काम करता है और हमें हमेशा फिट और यंग रखता है। हार्ट क्या है? एक मसल्स है। कैसा मसल? बॉक्सर के आर्म्स मसल से 4 गुना स्ट्रॉन्ग। हमारे आपके नहीं, बॉक्सर के। हमारे शरीर में 206 हड्डी है। हर हड्डी के बीच जो जोड़ होता है, वहां पे कार्टिलेज होते हैं, गादी। घुटने के बीच गादी है, वर्टेब्रे के बीच है। ऐसे 206 जॉइंट है। घुटने की गादी को यानी कार्टिलेज को सपोर्ट करता है घुटने के मसल। अगर कोएंजाइम Q10 आपके बॉडी में बराबर बन रहा है तो आपके नी के मसल्स भी हेल्दी रहेंगे, तो वो लुब्रिकेंट बना पाएंगे। मेरी बात को जरा और ढंग से सोचना। वो लुब्रिकेंट बना पाएंगे। लुब्रिकेंट बनता रहेगा तो गादी ड्राई नहीं होगी। गादी ड्राई नहीं होगी तो जो बीच में गादी है वो घिसेगी नहीं। अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, एक गोली कोएंजाइम शुरू करिए। 50 साल होगा तो भी गादी घिसेगी नहीं, 60 साल होगा तो भी गादी घिसेगी नहीं। क्योंकि रूट कॉज क्या है? मसल्स। हमारे मसल्स ही हमारे जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। कमर के मसल्स अगर वीक हो गए तो लंबस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, और गर्दन के हो गए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये कमर के या गर्दन के मसल्स लॉन्ग टाइम तक वीक चलते रहे तो गादी घिसती है, और लॉन्ग टाइम तक चलता रहे तो गादी जगह से खिसक भी जाती है। इसको स्प्लिटिंग या नॉन ऑपरेशन कहते हैं, जहां पर फाइनली ऑपरेशन करना पड़ता है। और आपको मजेदार बात बता दूं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की घुटने की गादी गिर गई, नो क्योर, ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं जाता है। एग्जाम्पल है हमारे यंग मैन मिस्टर वाजपेयी, आज भी चल नहीं पाते हैं। स्टेप से ऑपरेशन की बात करें
तो आप मुझे शायद ही एक मरीज बता पाएंगे जिन्होंने 5 साल पहले स्लिप डिस्क का ऑपरेशन किया हो और आज वो यहाँ खड़ा रह के हमें कह दे कि उसे कमर दर्द नहीं है। ऐसा मरीज मिलना मुश्किल है। आप सोचिए ये कोएंजाइम कहां से कहां तक इसकी लिंक बनी है। तो कोएंजाइम हमारे मसल्स को ठीक रखता है, हमारे ऑर्गन को ठीक रखता है, हमारी इंटरनल सेल्स की सारी सिस्टम को ठीक रखता है। आपके शरीर के हर सेल्स को ये फिट रखता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये एंजाइम काम करता है। इसलिए ये कोएंजाइम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक इंसान को सडनली अटैक आता है और वो गुजर जाता है, आप बोलोगे अरे कल तो मैं उसको मिला था, अच्छा था। जो इंसान सडनली हार्ट अटैक से गुजर जाता है उसके शरीर में वो एंजाइम Q10 बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाता है, तो हार्ट अटैक आता है। जो इंसान रोज एक गोली कोएंजाइम की खाएगा तो ये आपको 3 चीज का इंश्योरेंस पक्का बन जाता है। जब तक जिंदा हो किडनी, लिवर एंड हार्ट खराब नहीं होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी का स्लोगन क्या है? जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना? लेकिन वो है एक्चुअली जीवन के बाद ही। उस पॉलिसी का मजा पहले नहीं ले सकते हैं। हकीकत में कोएंजाइम जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। बाद इसलिए कि हेल्दी रहोगे तो लॉन्ग टाइम तक खूब पैसा कमाओगे ना, पीछे वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाओगे। यस और नो? बिल्कुल हेल्दी है तो काम करोगे, बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे। तो कोएंजाइम जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ऐसा ही अद्भुत प्रोडक्ट है कोएंजाइम। सिर्फ एक गोली खानी है, खाना खाने के आधे ही 1 घंटे बाद। एक एंटीऑक्सीडेंट, एक CO2। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? कई कारणों से उत्पन्न होने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। कोएंजाइम ईच एंड एवरी सेल एंड ऑर्गन को ठीक रखता है। कॉम्बिनेशन देखिए। इसीलिए जो कंसर्न में हम एंटर हो रहे हैं ये कंप्लीट एक हेल्थ कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो है कर्कुमिन C, जिसकी ये फाइल है। कर्कुमिन C हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। कर्कुमिन C 3 कॉम्प्लेक्स, ये नाम भी किसी कंपनी के साइंटिस्ट ने दिया है। हल्दी में से सिर्फ 5 ग्राम हिस्सा निकलता है, वो कर्कुमिन C होता है। हल्दी को जब आप काटोगे तो एक ऑरेंज रिंग दिखती है, उसी के अंदर कर्कुमिन C होता है। आप कहोगे अगर हल्दी का बहुत फायदा है तो कहते हैं मैं रोज 50 ग्राम खाऊं क्या? आपको पता है दूसरी चीज अनवांटेड है जो नुकसान भी करती है ओवर जाने के बाद। हल्दी के अंदर जो कुछ फायदे करने वाली चीज है वो है सिर्फ कर्कुमिन C कॉम्प्लेक्स जो एक्सट्रैक्ट के द्वारा निकाला गया है। 5% निकलता है हल्दी में से। अब इसको भी कंपनी ने क्या किया? स्टैंडर्ड बनाया, स्टैंडर्डाइजेशन किया है। जैसे कि एलोपैथी की दवा अगर 500 mg की है तो 500 mg है। जैसे कॉफी प्लेन, बुखार जाएगा तो जाएगा, पेन कम होगा तो होगा, स्वेलिंग कम होगी तो होगी, पक्का है ना? ऐसा जैसा कहते हैं वैसा होना चाहिए, और जैसा कहते हैं वैसा होने के लिए मॉलिक्यूल लेवल पे बॉडी की केमिस्ट्री के साथ रिसर्च करना पड़ता है। उस तरह रिसर्च करके इस कंपनी ने 100% ढूंढा ये कि कर्कुमिन C कैंसर ठीक करता है तो करता है, पक्की बात। मेरे पास रनिंग में 4 किस्से हैं। पहला किस्सा है जिसका आज 8वां दिन है। 68 ईयर की लेडी है, बंबई में चेंबूर नाम की जगह पर पेशेंट है। मैं आपको 5वें दिन की बात बता रहा हूँ, 5वें दिन की बात, आज 8वां दिन है। 2 कर्कुमिन C 3 बार शुरू की गई। कैंसर था, पैंक्रियाटिक कैंसर लास्ट स्टेज। पेशेंट चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, केमोथेरेपी पॉसिबल नहीं था, रेडिएशन पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया, उसको सिर्फ मॉर्फिन दिया जाता था, हाईएस्ट पेनकिलर, जो काम नहीं कर रहा था। मॉर्फिन लेने के बावजूद भी उसको पेन हो रही थी।
5 डेज के अंदर 75 to 80% पेन गया। वो लेडी उठकर बैठने लगी, घर में थोड़ा थोड़ा चलने लगी। आज 8वां दिन है, अभी की कंडीशन मुझे नहीं पता, 5वें दिन की कंडीशन बताए, पहले दिन की कंडीशन और 5वें दिन की कंडीशन में जमीन आसमान का अंतर था। एक पेशेंट है हमारे पास, तारापुर बोईसर, गुजरात से बहुत नजीक है, लंग्स कैंसर, बोन कैंसर था। पेट स्कैन रिपोर्ट लेके हमारे पास आए, हमने देखा वो पेट स्कैन यानी पूरे स्केलेटल का एक रिपोर्ट होता है, इसमें जहां जहां ब्लैक, टोटल ब्लैक धब्बे होते हैं वो कैंसर के होते हैं। वो रिपोर्ट हमने देखा, 2 केमोथेरेपी ले चुका था आदमी, उम्र थी 37 ईयर। मैंने कहा आप केमोथेरेपी मत लो, क्योंकि केमोथेरेपी में बहुत कम पेशेंट बचते हैं, बहुत कम पेशेंट बचते हैं, आप मत लो, छोड़ दो। तो अच्छा है, मेरी मान के उन्होंने छोड़ा। ये पेपर भी हमने उनको पढ़वाया, इसमें लिखा है केमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट है, कैंसर क्योर होता है, ऐसे रिसर्च पेपर है। ये देखने के बाद उन्होंने मेरी बात मानी, दवाई शुरू की। कम करता है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो, वायरल फीवर आता हो, सर्दी हो, कोई भी ट्यूमर को डिसॉल्व करता है। तो एंटी कैंसरस, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। अगर कहीं चोट लगी एक्सीडेंट में और मसल्स डैमेज है, उस कंडीशन में भी ये काम करता है, हमने केस को दिया है, तुरंत ही इमीडिएट रिलीफ मिलती है। तो इस तरह एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस है और ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हम इंडियन लोग हल्दी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कोई जख्म नहीं हिल हो रहा है तो हल्दी लगाते हैं, कहीं चोट लगी है, दर्द है तो हल्दी लगाते हैं। ये सिर्फ खाना है और तुरंत रिजल्ट आता है। मैं और आप अगर एकदम अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं, तो हफ्ते में एक गोली 2 बार भी खाए, तो कोई भी एब्नॉर्मल सेल्स अगर बॉडी में है तो टाइम टू टाइम न्यूट्रलाइज होता रहेगा। सिर्फ हफ्ते में 2 बार एक गोली खाए, उतना काम हो सकता है। इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो रोज 1 गोली खा सकते हैं। कैंसर है तो 2 गोली 3 बार। खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद कर्पूरनिंसी खाना होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉक्सिन को निकालना। हमारे शरीर में अनेक तरीके से टॉक्सिन जा रहा है। ऊपर से हम खाना भी ऐसा खा रहे हैं जिससे हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन बिगड़ रहा है। जैसे ब्रेड खाते हैं, काफी पिज्जा खाते हैं, तली हुई चीज खाते हैं, तरह तरह के जूस पीते हैं, ये सब करते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन हमारे आंतड़ी में जमा है, निकलता नहीं है, बॉडी में है। ये डिटॉक्सिफिकेशन सिर्फ 1 गोली रोज खानी है। 1 महीना खाइए, 2 महीना मत खाइए, 1 महीना खाइए, 2 महीना मत खाइए। जो आदमी का पेट बाहर निकला है ना, 1 महीने में 2-2.5 पेट अपने आप अंदर चला जाएगा, ओनली डिटॉक्स। ये जो कचरा पड़ा है वो वाकई में बाहर निकल जाएगा। गाड़ी की सर्विसिंग हम क्यों करते हैं? ताकि आधे रास्ते में गाड़ी हमें धोखा न दे। सफर में जब हम निकलते हैं तो गाड़ी हमें आधे रास्ते में धोखा न दे, तो हम खुद की एक लंबी सफर में निकले हैं जीवन जीने के लिए। तो ये जीवन जीने की सफर में ये गाड़ी हमें आधे रास्ते में धोखा न दे, इसलिए टाइम टू टाइम सर्विस करनी चाहिए। कार की सर्विसिंग साल में 3 या 4 बार करते हैं। इसकी एक बार करके तो देखो, एक बार करके देखो, गाड़ी कितनी स्मूथ हो जाएगी। फिर आपको लगेगा दोबारा भी करना चाहिए, तीसरी बार भी करना चाहिए, तो आप मान जाएंगे कि ये सर्विसिंग करने जैसा है, क्योंकि ये भी एक गाड़ी जैसे कारवां है। ये हार्ट आपका इंजन है, ये स्टमक में फ्यूल भरते हो, तब गाड़ी जैसा ही सिस्टम है हमारे बॉडी में, ये भी एक गाड़ी है, तो उसको भी अच्छी तरह कारवां चलाना चाहिए। अब पहले हमने देखा फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना, अनेक कारणों से उत्पन्न होने वाले। फिर हमने देखा CO2 अंदर के पुर्जियोल सेल्स को ऐसे बनाना। फिर हमने देखा कर्पूरनिंसी की जरूरत है तो खाना है एब्नॉर्मल सेल्स को डिसॉल्व करने, और डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन बहुत काम की बात रह गई है, और वो बात है हमारे शरीर को 120 पोषक तत्व चाहिए सेल्स को, उसमें से 46 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो 46 जो है वो हमें मिलता है स्पिरुलिना में से।
आप लोग स्पिरुलिना के बारे में हम जानते हैं, मार्केट में मिलती है, गली गली में मिलती है, वो गली गली में ही उगाई जाती है, वैसे स्पिरुलिना नहीं। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्पिरुलिना का, इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्पिरुलिना का, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो स्पिरुलिना जहां जाती वहां कोई इंसान उसको नहीं खाता है, वो जानवरों को खिलाया जाता है, इंसान को नहीं। जो स्पिरुलिना इजीली अवेलेबल मार्केट में, उसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी। कैप्सूल खोलिए, 4 बूंद पानी डालिए, इतनी गंदी स्मेल आएगी कि मजा नहीं आएगा। गोली खाओगे, ऐसी डकार आएगी, बाजू वाला मर जाएगा। लेकिन ये स्पिरुलिना आप चबा के भी खाएंगे तो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पिरुलिना ब्लू एल्गी है, स्पिरुलिना स्पीटेंट है, ये प्रिटेंशियस है, स्पिरुलिना प्रिटेंशियस इसको कहते हैं। ये स्पेशल है, इसके अंदर वो 46 इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है इसमें है। ये कंपनी नासा को भी स्पिरुलिना सप्लाई करती है बायोग्रीन के साथ, क्योंकि ISO 22000 है। तो डेली अगर आप 2 स्पिरुलिना खाते हैं तो आपके शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो इसमें से मिलेगा और आपको 1 महीने में उसका परिणाम दिखेगा। जो 4 दवाई मैंने कही हेल्दी आदमी को लेने के लिए, एक बार उसको फॉलो करके देखिए और आपको 1 महीने में फर्क लगेगा। अगर आप अपने आप को हेल्दी समझते थे तो 1 महीने बाद वाकई में हेल्दी समझने लगेंगे, तब पता चलेगा कि अब वाकई में मैं हेल्दी। तो एक हिस्सा हमने क्या देखा, हमेशा हेल्दी रहने की प्रोसेस देखी, लेकिन अब हम आएंगे बीमारी में। एक हिस्सा है हेल्दी रहने का, तो एक हिस्सा है बीमारी का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी लिवर के बारे में। लिवर सपोर्ट करके एक दवा है कंपनी ने खास करके ये उन लोगों के लिए डेवलप की है जो लोग शराब पीते हैं। खास करके ये शराब पीने वालों को ध्यान में रखकर दवाई को डेवलप किया गया है। इस दवाई को खाने से शराब की साइड इफेक्ट नहीं होती। आप सोचोगे शराबियों के लिए इतना ध्यान क्यों रखा गया? आपको क्या लगता है दुनिया इतनी सीधी और इतनी समझदार है कि आप किसी को समझाएंगे कि शराब से नुकसान होता है और वो छोड़ देगा? नहीं। एक भले आदमी ने एक आदमी को समझाया कि शराब पीना बहुत बुरी बात है। आदमी बैठ जाता है, बीवी के साथ झगड़ा होता है, दोस्तों के साथ झगड़ा होता है, पैसे की बर्बादी होती है, लीवर खराब होता है, किडनी फेल होती है, बहुत कुछ समझाया। तो उसको लगा बात तो सही है, शराब छोड़ दो। उसने शराब छोड़ दी। अब शराबियों के दोस्त सारे शराबी होते हैं, तो उसमें उस दोस्तों को भी छोड़ना पड़ा, उस गली को छोड़ना पड़ा, उस बार है वहां से जाना भी बंद कर दिया। बहुत दिन हो गया, उसने सोचा चलो आज अपनी पुरानी वाली गली से चलते हैं। चलने लगे, बार नजीक आने लगा। ये भी पता है कि दोस्त अंदर बैठे हैं, धड़कनें तेज होने लगी और तेज हो गई धड़कन। मेरा काल का गेट भी आया, 2 सेकंड रुके, आगे निकल गए, काफी कदम आगे निकले, फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर आगे निकल गए, फिर रुक गए और अपने आप की खुद ही पीठ थपथपाई। क्या बात है, शराब खाने से 40 कदम आगे निकल गए। चल इसी खुशी में आज तुझे पिलाता हूं। ये वैराग्य जो है ना थोड़े दिन का है। कोई कहता मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, क्यों? लंच प्रॉब्लम आया, डॉक्टर ने बोला छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद किधर गया लंच प्रॉब्लम, अच्छा हो गया, चलो भाई शुरू। यही होता है। तो कंपनी को मालूम है दुनिया इतनी सीधी नहीं है, इतना जल्दी कोई शराब छोड़ता नहीं है, तो शराब से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? कौन कहता है प्यालों को पाँव नहीं होते? हमने तो उसे हर महफिल में घूमते देखा है कि नहीं? घूमते हैं ना पहले तो शराब पीने से लिवर खराब होता है, ये सत्य है। लेकिन लिवर सालों साल शराब पीने से भी नहीं खराब होता, फिर भी नुकसान तो होता है। उस नुकसान से भी बचने के लिए फॉर्मूला है। तो शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली खा लो, उसके बाद शराब पीने से शराब की साइड इफेक्ट नहीं होगी, लिवर खराब नहीं होगा, वाटर बैलेंस मेंटेन रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। शराब पीने से क्या होता है, जैसे अल्कोहल ब्लड में मिक्स होता है, ब्रेन के अंदर चेंजेस आना शुरू होता है, ब्रेन स्लो हो जाता है,
और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एक हार्मोन है ADH हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन उसको कहते हैं। उसका काम है इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। जब वो कम प्रोड्यूस होगा तो बॉडी में से वाटर ज्यादा निकलता है, और जब वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो वाटर रिटेंशन होता है, स्वेलिंग आती है, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड स्लो हो जाती है। तो इसका काम है कि लिवर फंक्शन को सेट करके, लीवर ही हमारे बॉडी की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। लीवर 500 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार के केमिकल बनाता है और 1000 से ज्यादा उसके डिफरेंट टाइप के फंक्शन है। लीवर बहुत कीमती चीज है हमारे शरीर में। तो ये दवा लीवर सपोर्ट ड्रिंक करने वाले के लिए है। तो आप बोलोगे नॉर्मल आदमी ने क्या गुनाह किया है? नॉर्मल आदमी के लिए भी यही है। जिसका पेट बाहर है और 35 उम्र क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे 100 लोग सोनोग्राफी कराएंगे तो 40 या 50 लोगों को फैटी लिवर मिलेगा। पक्की बात है। तो 50 लोगों को फैटी लिवर मिलेगा। उसको भी ये गोली एक गोली 2 बार खानी चाहिए। शराबी को भी एक गोली 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद, शराब पीने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के बाद जिसका ये ऊपर वाला पेट अपर एब्डोमेन फूल जाता है, बहुत देर तक ऐसा लगता है खाना नहीं पच रहा है, तो भी उसका लिवर स्लगिश है, यानी कि लेजी है, आलसी है। 2 आदमी है, बीमारी कुछ नहीं है, एक ज्यादा काम कर रहा है, एक कम काम कर रहा है। लीवर अगर कम काम करेगा, उसका फंक्शन कम है, तो आपको वो पता नहीं चलता है। उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है चेकिंग की, लेकिन उसकी फीलिंग की टेक्नोलॉजी। अगर आपका ऐप हैवी हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, 2 टाइम भूख नहीं लग रही है, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए लिवर वीक है। वैसे को भी देना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दवाई बंद कर दो, क्योंकि ये तो बीमारी की दवाई है ना, रेगुलर खाने वाली तो बता दी, ये प्रॉब्लम के हिसाब से। उसके बाद बात करेंगे मोटापे की। आती मेरे साथी मोटापा, बुरा मत लगाइए, कुछ ना कुछ मजेदार बात तो करनी पड़ती है। अगर मैं 10 किलो वजन उठाकर 1.5-2 किलोमीटर चलता हूँ तो थक जाता हूँ। तो जो लोग 20 किलो उठा के घूम रहे हैं कंटिन्यू, उसका क्या? सही बात है कि नहीं? तो जिसका वजन ज्यादा है उसको पता नहीं चलता है कि डेली उसकी बॉडी को कितना थकान लग रहा है। मोटापा अपने आप में छोटी बीमारी है, बड़ी बीमारी है। क्या बड़ी बीमारी है? एक बिल्डिंग को जब हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेते हैं हाथ में, तो अगर पिलर 4 माले के लगाए हैं तो उतना ही लोड लेगा वो। उसके ऊपर और चौड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पिलर लूज हो गए, उस पिलर को घुटना कहते हैं। तो वजन की सबसे पहली असर हमारे घुटने पे होती है। और मजेदार बात क्या देखी हमने कि वजन कम करने के लिए भी घुटने का ही उपयोग करते हैं। चलते हैं ना, चलते हुए इंसान को कभी पतला देखा है क्या? जो बोलता है मैं चलने को जा रहा हूँ पतले होने के लिए। अरे कोई तो पतला दिखाओ भाई जो चल के हो गया हो। नहीं मिलेगा, पतला ही नहीं होता। वो टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ, लोग पतले क्यों नहीं होते हैं, चल के भी पतले नहीं होते। फिर दूसरा नुस्खा क्या दिखता है? चलो यार खाना ही कम खाते हैं, खाना कम खाते तो भी नहीं पतला होता है, आधी रोटी खाते तो भी पतला नहीं होता है, क्योंकि उसके बॉडी में केमिकल होता है, लेप्टिन इम्बैलेंस हो जाता है। आप कसरत करो, कुछ भी करो, कभी पतले नहीं होते हैं जब तक लेप्टिन को बैलेंस नहीं करोगे। इस कंपनी की जो दवा है लीन गार्ड, ये लीन गार्ड जो है इसको अवार्ड मिला है, दुनिया की एकमात्र दवा है जिसको अवार्ड मिला है। वजन कम होता है तो होता ही है नॉर्मल लाइफस्टाइल में। सिर्फ एक स्टिकर, उस बॉटल का बॉक्स खोलोगे उसमें एक स्टिकर निकलता है, वो स्टिकर संभालने का, उसको खोलने का, संभाल के डाइनिंग टेबल के सामने लगा देने का। उस स्टिकर पे लिखा है वो पढ़ने का खाना खाने के पहले हमेशा, और उसमें क्या लिखा है ये आप जानना चाहोगे।
उस पर लिखा है मैं इंसान हूं, खाने के पहले पढ़ने का। साइकोलॉजिक समझा रहा हूं। एक घर में दो आदमी है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना। दोनों आदमी ऑलमोस्ट सेम टाइप का खाना खा रहे हैं, ऑलमोस्ट क्वांटिटी भी सेम है, लेकिन एक मोटा हुए जा रहा है और एक मेंटेन है। इसका मतलब प्रॉब्लम खाने में नहीं है, जो मोटा हुए जा रहा है उसके बॉडी में प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम में दवाई सॉल्व करती है। बाकी हम रोज 10 गुलाब जामुन खाओ, रोज 1 किलो आइसक्रीम खाओ, तो उसके लिए दवा नहीं है। इसलिए वो स्टिकर उसमें जो निकलेगा ना, उसको जरूर पढ़ने का। मैं इंसान हूँ, नॉर्मल रूटीन में जो खाना एक फैमिली मेंबर खा रहा है, जिसकी बॉडी नॉर्मल है, उतना ही खाना आप खाइए, भरपेट खाइए। एक कंपनी कहती है हमारा जूस पीजिए दोपहर को, खाना छोड़ दो, आप पतले हो जाओगे। जहाँ हम फूड में से 2200 से 2800 कैलोरी लेते हैं, उसके बदले में 500 कैलोरी का या 400 कैलोरी का जूस पिएंगे। इसका मतलब ये कि मैं आपको कहता हूँ कि खाना 25% खाओ, 25% खाना खाओ ना, जूस पीने की क्या जरूरत है। और जूस भी पीना है तो वो क्यों पीते हो? रियल का पियो, कम से कम रियल तो है, उतना ही फायदा उस जूस से भी होगा। एक ग्लास रियल का जूस पी लो, अगर एक ग्लास ये जूस इनका पीना है, सेम बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रियल के एक ग्लास जूस में कम से कम रियल है और 500 ही कैलोरी है। सेम थिंग यहाँ पे भी मिलेगा। ये कंपनी ऐसा नहीं कहती है, ये कंपनी कहती है घर का दूसरा मेंबर खाता है वैसे खाना खाओ और गोली खाओ, आपका ठीक हो जाएगी। खाना खाने के बाद दोपहर को 1 गोली और रात को 1 गोली। हाँ, एक बात बताना भूल गया, इस कंपनी की खासियत है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है, इसके डोज डिसाइडेड है। 10 गोली, 12 गोली, 16 गोली, 22 गोली, 25 गोली नहीं खानी पड़ती है। डोज डिसाइड है, ओवरडोज नहीं है। गोली खाते रहो, पता ही नहीं कौन सी बीमारी में कितना डोज देना, ऐसा यहाँ नहीं है। जो डोज बताया उससे ज्यादा लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो वजन घटाती है। उसके बाद है ओमेगा बायो प्लस, जिसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है। आप कहेंगे हम ये जानते हैं मार्केट में मिलता है। मार्केट में मिलने वाली मैक्सिमम ओमेगा जो होती है 3 and 6, वो पाम, फिशी, फिश, स्मेल ओमेगा होता है, पाम ऑयल का। चेकिंग नहीं कराते हैं लोग। कई कंपनी इसी तरह पाम ऑयल का बेचती है, चाइना से कंटेनर के कंटेनर इंपोर्ट होते हैं। लेकिन उस कंपनी ने जो भी दिया है लोगों को, एविडेंस के साथ दिया है, प्योर फॉर्म में दिया है, जो वादा किया है उस वादे के मुताबिक दिया है, तो ये प्लांट एक्सट्रैक्ट में से बना है। इस ओमेगा बायो प्लस में EPA और DHA होता है। ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है और EPA का काम है हमारी आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, आर्टरी को हेल्दी बनाना। तो ओमेगा बायो प्लस किसको देना चाहिए? तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बच्चों से। जिसकी उम्र 10 क्रॉस हो चुकी है, वो बच्चा रोज 1 गोली खाए तो नेक्स्ट ईयर उसका ब्रेन परफॉर्मेंस यानी स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहेगा। डिस्कवरी पे ये रिसर्च के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई ओमेगा बायो प्लस के ऊपर। अब याददाश्त की बात करें तो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, बड़े आदमी को भी लगता है या बड़े बच्चे को भी लगता है कि कॉलेज में पढ़ते वक्त उसकी याददाश्त कम हो रही है या याद नहीं रहता है, तो भी लेना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर होता है, धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती, उसको भी लेना है। जिसको हाई बीपी है, आर्टरी की इलास्टिसिटी बढ़ेगी, हाई बीपी के लिए अद्भुत है ये। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए जरूरी है, पार्किंसन पेशेंट के लिए जरूरी है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड पेशेंट के लिए ये जरूरी है। इस तरह ये बहुत ही अद्भुत प्रोडक्ट है और परिणाम देता है। अब बात करेंगे दुनिया की बड़ी बीमारी। WHO ने 2006 में कहा था कि पूरी दुनिया में जितने मरीज डायबिटीज के हो गए 2010 में 60% उसमें से इंडिया के हो गए। पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज हो गए 2010 में 60% लोग इंडिया से हो गए और 2010 जा चुका है, 11 में प्रवेश कर चुके हैं और 11 का भी ये आखिरी मंथ है।
3 हफ्ते के बाद 2012 में हम प्रवेश करने वाले हैं, और जो बात WHO ने 2006 में कही थी वो बात सत्य हो गई है। आज इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है वो डायबिटीज है। फर्स्ट नंबर डिसीज डायबिटीज है, सेकंड नंबर डिसीज हार्ट है, थर्ड नंबर डिसीज हाई बीपी है, फोर्थ नंबर डिसीज जॉइंट का प्रॉब्लम है। ये 4 बीमारी लोगों में कॉमन देखी गई है। तो डायबिटीज पे बहुत रिसर्च बहुतों ने की, लेकिन किसी को ऐसी कुछ एविडेंस वाली बात मिली नहीं। कोई कहता है करेला खाना बहुत अच्छा है, कितनों को पता है करेला डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है? बराबर क्यों पता है? क्योंकि करेला का सेल बिल्कुल पेनक्रियास जैसा है, पहली बात तो इसलिए अच्छा है। और दूसरी बात कि हमने एक वेजिटेबल थेरेपी निकाली है। करेला बांधो इधर पेनक्रियास है, करेला भी ऐसा रहेगा तो भी पेनक्रियास को फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूं खट्टा मत खाओ, तो आप दही में 4 चम्मच शक्कर डालोगे, दही मीठा हो गया। तो मैंने आपको क्या मना किया था? खट्टा मत खाओ, लेकिन आपने मीठा खाया। खट्टा नहीं खाया ना, मीठा खाया। खाली आपको खट्टे का एहसास नहीं हुआ, खट्टा तो बॉडी में गया, खट्टा अपना नुकसान करेगा। अगर बॉडी में शक्कर ज्यादा है, कड़वापन जाने से शक्कर न्यूट्रलाइज नहीं होता है। तो ये करेला का डायबिटीज से कोई दूर दूर तक का कोई रिश्तेदारी नहीं है। करेला अलग बिरादरी का है, शुगर अलग बिरादरी की है, कोई लेन देन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए वो कंसेप्ट करेला का गलत है। ऐसा करेला खा के मत करिए प्रॉब्लम। एसिडिटी वाला तो करेला खाइए ही मत, एसिडिटी तुरंत बढ़ जाती है, आपको पता नहीं होगा। करेला खा के देखो एसिडिटी बढ़ जाएगी, सबको डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे नुस्खे का कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ कंपनी ने रिसर्च करके ऐसा मॉलिक्यूल निकाला जो पेनक्रियास पे काम करता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है सिल्विनॉल। आगे .com लगाइए, पूरे रिसर्च पेपर साइट पे दिए हुए हैं। कंपनी की एक बुक है, ब्लू बुक, आपको मिलेगी। उस बुक में 79 पैटर्न रजिस्टर है, हर पैटर्न की अपनी वेबसाइट है। कोई भी बात पब्लिक से छुपाई नहीं गई है। जो रिसर्च के डॉक्यूमेंट पढ़ लो, उतना सारा नेट पे अवेलेबल है सब कुछ। तो ये ऑप्टिमम करके जो दवा है डायबिटीज की, ये एकमात्र दवा है खाना खाने के 1 घंटे पहले लेनी है, दोपहर को और रात को। इससे टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट का ऑलमोस्ट सभी पेशेंट का 3 महीने में इंग्लिश दवा छूट जाएगा। ये टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 का मतलब वो इंसान जो दवाई की गोली खाकर अपना शुगर कंट्रोल करता है। उसमें दवाई की गोली खा के कंट्रोल करने वाले में दोनों बिरादरी के लोग आएंगे, हेरिडिटरी एंड स्ट्रेस वाला डायबिटीज। टाइप 1 जहाँ पेनक्रियास में मेजर डैमेज है, इंसुलिन लेना पड़ता है, उसको टाइप 1 कहते हैं। टाइप 1 में जो है डायबिटीज भी आता है। तो टाइप 2 डायबिटीज की यहाँ बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3-4 महीने में इंग्लिश दवाई छूट जाएगी। वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी पाएगा, शक्कर खा पाएगा, राइस खा पाएगा अप टू सर्टेन लिमिट। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर एक डायबिटीज का मरीज ये सोच के अगर खुश होता है कि मैं डायबिटीज की गोली खा रहा हूँ इंग्लिश और मेरा डायबिटीज कंट्रोल है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। इंग्लिश गोली से डायबिटीज कंट्रोल रखने के बावजूद भी डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटीज की वजह से किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड आंखों का प्रॉब्लम होता है। कंट्रोल रखने के बावजूद इस बात पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश नहीं होना चाहिए कि डायबिटीज कंट्रोल है, डायबिटीज कंट्रोल रखने के तरीके के ऊपर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से डायबिटीज कंट्रोल रखने से दूसरी बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए डायबिटीज का मरीज ऑप्टिमम एक गोली खाना खाने के पहले दोनों टाइम खाए। लेकिन बाकी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक चीज यूनिवर्सल है, 30 साल के बाद सभी को CO2 चाहिए, 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए और सर्विसिंग चाहिए। अगर डायबिटीज है तो ये एडिशनल है, तब जाके एक कायाकल्प होता है और डायबिटीज वाला मरीज भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी पाएगा, डायबिटीज की साइड इफेक्ट से बच के और खाना पीना भी सकेगा। पैसा बहुत है, आ नहीं सकते हैं।
लोग मिठाई खा रहे, रोज पार्टी कर रहे हैं। घर वाले मेंबर भी खाने नहीं देते हैं, गुलाब जामुन आया तो खाने नहीं देते हैं, कभी कभी छूट छूट के भी खा लेते हैं पुलिस वाले, सब सो गए फ्रिज खोल के खा रहे हैं। ऐसी भी नौबत आती है, क्योंकि देखेंगे तो डांटेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। ये लेडीज के लिए है, लेडीज की हड्डी मजबूत बनाता है। आप कहोगे मत दो ऐसा, वैसे ही हड्डी इतनी मजबूत है, हमारी हड्डी टूट रही है, ऊपर से आप और मजबूत बनाने की बात कर रहे हो। ऐसी मजबूत हड्डी बनाने वाली दवा ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। लेडीज जब बच्चे को जन्म देती है, एक या दो बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वीक होने लगता है, मसल्स वीक होते हैं, हड्डी वीक होती है, सब कुछ चेंजेस आता है। एक उम्र के बाद लेडीज के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। लेडीज के हिस्से में देखा गया है कि उसकी पेल्विक जॉइंट जो है गिर जाने से पेल्विक जॉइंट टूटता है, जेंट्स का ऐसा नहीं होता है, खास करके लेडीज में देखा गया है। लेकिन हकीकत में रिसर्च ये कहता है कि पहले पेल्विक जॉइंट टूटता है, फिर वो लेडीज गिर जाती है, लेकिन लोग समझते वो गिर गए इसलिए पेल्विक जॉइंट टूट गया। कहानी कुछ अलग है। तो लेडीज के बोन इतने वीक होते हैं कि उसमें छेद हो जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसके लिए बनाया गया है। एक गोली 2 बार देने से 3 महीने के बाद बोन डेंसिटी चेक करेंगे तो पता चलेगा बोन वापिस अच्छी हो चुकी है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद रोज 1 गोली खाने से आगे चल के कभी भी बोन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो है R3 पावर, जॉइंट के लिए है। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? घुटना, कमर, गर्दन की हड्डी की बीमारी बहुत है, संधिवात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, ऐसी समस्या बहुत है। उसके लिए कंपनी की एक दवा है R3 पावर। दोपहर को और रात को 1-1 गोली खानी है। 1 हफ्ते से 4 हफ्ते में अद्भुत परिणाम आता है सभी पेशेंट पे। जिसको भी दिया है हमने देखा है उसका तुरंत ही परिणाम आता है। तो अभी प्रोडक्ट की कहानी खत्म हो गई, लेकिन 2 मिनट प्रोडक्ट पे और कहेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट टाइम और लूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं। इतनी देर आप शांति से बैठे हैं तो टोटल 10 मिनट और तो भी लेना है। CO2 हर ऑर्गन और हर सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए 30 साल के बाद लेना है सबको। एंटीऑक्सीडेंट 18 साल के बाद रेगुलर लिया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट 18 साल के बाद रेगुलर 1 गोली ले सकते हैं। CO2 30 साल के बाद लेना ही है। 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, वो छोटे बच्चे को भी आधी गोली दे सकते हैं 5 साल के बाद। 10 साल के बाद 1 गोली, 15, 16, 17 साल के बाद 2 गोली, 4 गोली, 6 गोली दे सकते हैं। तो इस तरह इस कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं रेगुलर बेसिस पे हमको यूज करना है। 1000 करोड़ की जायदाद को संभालना क्लियर था, और बाकी प्रोडक्ट बीमारी के लिए है, उसको यूज करना है। अभी सिर्फ आपके मैं 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के बारे में। चलिए, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। दुख का कारण पैसा है, सुख का कारण पैसा है। भाई भाई के बीच झगड़ा होता है पैसे के कारण, पड़ोसी को भी प्रॉब्लम होता है पैसे के कारण, क्योंकि बाजू वाले की गाड़ी आ गई तो मुझे प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी आ गई तो बाजू वाले को प्रॉब्लम। मामला सिर्फ पैसे का है कि नहीं? पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बचपन से मैंने एक ही चीज सुनी है कि पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो। जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इस बिजनेस की शुरुआत इस पृथ्वी पे 2 आदमी ने की थी। चलिए उस 2 आदमी से आज आपको मैं मिलाना चाहूंगा। आपको भी सरप्राइज होगी, यही वो 2 आदमी थे क्या वाकई में? यस, जिस 2 आदमी को मिलाऊंगा वही 2 आदमी थे जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। ये एक आदमी है, इसको अच्छी तरह देख लो। ये दूसरा आदमी, इसको अच्छी तरह देख लो। ये 2 आदमी हैं जिन्होंने बहुत साल पहले बिजनेस की शुरुआत की। तो ये पहला आदमी कौन है? ये पहला आदमी जो कुछ बनाता है, और ये दूसरा आदमी उसको उपयोग में लेता है। किसान ने अनाज बनाया, कुम्हार को दिया, कुम्हार ने मटका दिया, बार्टर एक्सचेंज।
लेकिन उस जमाने में हर गांव इंडिपेंडेंट था। अकाल दुकाल होता है तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे। समय के साथ ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन में तरक्की हुई, सोने चांदी के सिक्के आ गए, सोने चांदी के सिक्के आ गए, तो ट्रांसपोर्टेशन में तरक्की हुई, सिक्के आए, तो ये आदमी जो कुछ बनाता था वो बेचने के लिए बाजू के गांव में हफ्ते में एक दिन जाता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन बढ़ चुका था, गांव में बेचने के बाद भी माल बचता था। बाजू के गांव में जो बेचने जाता था, बचा हुआ माल वो वापस लेके आता था। धीरे धीरे पहचान हो जाती है, एक दोस्त बन गया, बचा हुआ माल दोस्त के पास रख देता था। दोस्त क्या कहता है कि आपके पीछे भी लोग माल मांगते हैं, तो इसने कहा ठीक है, देना शुरू करो। ये दोस्त कब तक फ्री में काम करेगा? धीरे धीरे ये 2 में से 3 हो गए, जैसे शादी के बाद कब होते पता नहीं चलता है, ये एजेंट बन गया। ये 2 के 3 के चक्कर में आज बीच में 10 लोग हैं, यहाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 10 लोग हैं बीच में, यहाँ हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये पेन अभी खरीद के लाए नीचे से, 20% मार्जिन दुकान वाले को मिला। आप बोलोगे अरे यार बहुत मार्जिन है, लेकिन सोचो वो गली में बेच रहा है, उसके गिरा के गली है, उसका सप्लाई, उसको 10 गली मिली है तो उसको 5% मिलेगा, उसके ऊपर 4, 3 ऐसे 10 जगह पैसा बढ़ता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों? मैं पैदा हुआ तब भी ऐसा था, मेरे पिताजी पैदा हुए तब भी ऐसा था, परंपरा चली आ रही है, चलने दो। एक बिजनेस में कुछ खोज होती है ना, तो सिर्फ 300 लोग पैसा कमाते, समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली। एक आदमी कुछ मैन्युफैक्चर करता है, एक आदमी सीना तान के खड़ा हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान का सीएनएफ दे दो। क्यों? अब उसके बाद पैसा है, किसी को कमाने नहीं देगा। एक कहता है गुजरात का सीएनएफ दे दो, क्यों? उसके बाद पैसा कमाने नहीं देगा। एक बोलता है महाराष्ट्र दे दो, एक बोलता है यूपी दे दो, फिर एक बोलता है उसमें से भी सब डिवीजन, बंबई दे दो, पूना दे दो, सब दे दो। ऐसा करते करते वो प्रोडक्ट आगे जाता है। कम से कम 2 या 3 करोड़ दुकान वाले उसको रखते हैं, 15 से 20 करोड़ पब्लिक उसको यूज करती है। 15 से 20 करोड़ पब्लिक उसको यूज करती है, जो हम ही लोग हैं। ये दुकान वाला है, ये ऊपर बैठे हैं टॉप लोग, ये सैंडविच हो गया। शायद ही कोई दुकान वाले की एक में से दोस्त, ये मैंने एक दुकान वाले को बचपन में देखा था, बड़ा यंग और स्मार्ट था, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक बैठता है, अभी भी बैठ रहा है। 1 ही 2 दुकान हुई नहीं, दुनिया कभी देखी नहीं, पैसा कभी कमाया नहीं, वहीं का वहीं है। सारा पैसा जो कमा रहा है ये लोग कमा रहे हैं, ये लोग। इसलिए बिजनेस किसको कहते हैं? पैसे वाला ज्यादा पैसा वाला हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है, उसको कहते बिजनेस। क्योंकि ये परंपरा हमने शुरू से देखी। इस परंपरा से हटके जो परंपरा शुरू हुई है वो हमारे पैदा होने के बाद हुई है, इसलिए वो परंपरा हमें डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन मैं कहूंगा डाइजेस्ट करना होगा। डाइजेस्ट करेंगे तो आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि हमारे दादाजी के पिताजी ने शुरू किया था, आज उनको नॉलेज है। नहीं तो फिर वो शुरू करे, बोले कि हमारे दादाजी के दादाजी को पता ही नहीं था। ये हाल नहीं होना चाहिए। आने वाला भविष्य का, नए जमाने का नया बिजनेस जो हम अभी समझने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 7 मिनट लेवल मार्केटिंग, MLM। आज धीरूभाई अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो, क्यों पैसा कमाया इतना? जस्ट ओनली टाइम मल्टीप्लिकेशन। कैसे किया उन्होंने? आज अगर 10 लोग मेरे पास नौकरी पे है, मेरा काम बढ़ता है तो 10 और लगाऊंगा, 10 और लगाऊंगा, 10 और लगाऊंगा। ऐसा करते करते धीरूभाई का कारोबार बढ़ा। 1 लाख लोग काम करते हैं, रोज 8 घंटा करते हैं। धीरूभाई अंबानी डेली 8 लाख घंटे काम करता है, बहुत सारा पैसा आता है, छोटा सा कमीशन बांटा जाता है 1 लाख लोगों के बीच, जिसको सैलरी कहते हैं। वो 1 लाख लोगों का भविष्य है क्या? नहीं। तो लाइन जब ऐसे बढ़ती है तो उसको बिजनेस कहते हैं। ये तरीका से अलग है। लाइन ऐसे बढ़ती है उसको कहते हैं MLM। क्या एक आदमी पैसा नहीं कमाता है, लेकिन जो कमाई एक आदमी कमाने वाला था वो हजारों के बीच बढ़ता है, शेयरिंग में बढ़ता है।
एक के पास नहीं जमा हो जाता है, सभी के बीच बढ़ता है, उसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो यहाँ पर ये पैसा हम सब लोग के बीच कैसे बटेगा वो हम देखेंगे डिटेल में। चलिए, इस कंपनी का प्लान है, बाइनरी है, एक्यूमुलेशन जनरेशन है, रॉयल्टी है और कुछ कवर है, कंडीशन नहीं है, रिन्यूअल नहीं है, कुछ नहीं है। 2800 रुपये में आप जुड़ सकते हैं, 5000 में जुड़ सकते हैं और 9000 में जुड़ सकते हैं। एमआरपी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे 2800 के, 5000 के और 9000 के। ज्वाइनिंग होने के बाद आपका आईडी बन जाता है, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगी। जो आदमी 2800 में जुड़ेगा, 2800 में किसी को जोड़ोगे 100 रुपया स्पॉन्सर कमीशन मिलेगा, या 150 रुपया स्पॉन्सर कमीशन मिलेगा, यहाँ 300 रुपया स्पॉन्सर कमीशन मिलेगा। यहाँ पे कैपिंग 35,000 रुपया है, यहाँ कैपिंग वीकली कैपिंग 75,000 है और यहाँ 1,30,000 रुपया है। सभी लोग कैपिंग के बारे में जानते हैं, कैपिंग क्या होता है? चलिए मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा। समझो आपने 2800 वाली आईडी ली और इस हफ्ते में यहाँ पे आपकी कमाई 1 लाख हुई, तो कंपनी आपको इस हफ्ते में मैक्सिमम 35 देगी। लेकिन आपकी आईडी 9,000 की और 1 लाख कमाई हुई तो 1 लाख मिलेगा कि नहीं? डेफिनेटली मिलेगा। उल्टा 30 अभी और बाकी है। लेकिन यहाँ 2 लाख कमाई हुई तो 1,30 मिलेगा, और 2 लाख कमाई हुई और ये यहाँ पे हो तो 35 मिलेगा, जिसको कहते हैं कैपिंग। आपके नीचे कारोबार जो आपने नहीं करना है, आप 2 को लाए, वो 2 को लाता है, ऐसे कारोबार चलते रहता है और उस कारोबार के जरिए जो इनकम जनरेट होती है तो उसमें कैपिंग लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू योर कोड। ओके, यहाँ बाइनरी 300 रुपया है, यहाँ बाइनरी 600 रुपया है और यहाँ 1100 रुपया बाइनरी है। अब समझो कि आप 2800 वाले कोड से जुड़े, लेकिन आपके लक में 5000 वाला आया। कंपनी ने क्या किया है? 1 जीरो निकाला 60 पॉइंट, 1 जीरो निकाला 30 पॉइंट, 1 जीरो निकाला 110 पॉइंट। आपके लक में एक 5000 वाला आया तो 60 पॉइंट, राइट में 9000 वाला आया तो 110 पॉइंट। 60 पॉइंट में तो मैच हो गया, कंपनी आपको 600 रुपया दे देगी। 50 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड। इस तरह इनकम 35 से ज्यादा हुई तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका कोड बड़ा है तो 75 से ज्यादा नहीं मिलेगी। आपका कोड उससे बड़ा है तो वीकली 1,30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं कैपिंग। क्लियर? बाइनरी में जो लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं वो जनरेशन में फ्रंट लाइन में बैठते हैं, लेकिन बाइनरी में स्पॉन्सरशिप कैसे की जाती है वो हम अभी देखने वाले हैं। बाइनरी यानी कि 2 लोग, एक को यहाँ रखा, एक को यहाँ रखा, तीसरा मिल गया तो यहाँ रखा, बाद में 2 लोगों को आप नहीं लाए, चौथा मिला यहाँ रखा, तीसरा। तो जितने लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं नेक्स्ट प्लान में आपके ऐसे फ्रंट लाइन में बैठ जाते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे बाइनरी इनकम लेने के लिए मंथली कंपलसरी रिपर्चेस नहीं है, लेकिन आपको जनरेशन इनकम लेनी है तो मंथली 1600 रुपए की रिपर्चेसिंग कंपलसरी है इस इनकम को लेने के लिए। कंपनी क्या करती है? आपकी वीकली इनकम में से 10% एंड मैक्सिमम 400 रुपया कट करती है। वीकली इनकम में से 10% या तो वीकली मैक्सिमम 400। अगर आपकी इनकम 10,000 हुई, ये वीक में कंपनी 400 काटेगी, लेकिन आपकी इनकम 2,000 हुई तो 200 काटेगी, 10%। यानी कंपनी मैक्सिमम 1600 काटती है, इसलिए कि वो आपकी परचेसिंग हो जाएगी, आपकी लाखों की इनकम मिस ना हो जाए, आप भूल ना जाओ खरीदना इसके लिए। अब होता क्या है, आपने चार्जर को स्पॉन्सर किया, वो लोग भी आगे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, उसके आगे भी हो रहा है। ये आपका फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। क्लियर? आपको आपकी परचेसिंग पे 20% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है।
ये बिजनेस वॉल्यूम बीवी पे मिलता है। 4 रुपीज इज इक्वल टू 1 एसवी। जब 1600 का माल खरीदते हैं तो 400 एसवी का आप माल खरीदते हैं। एसवी में 60% मिलाएंगे तो बिल बनता है 240 मिलाया 640। ये 640 का 20% यानी कि 128 रुपया आपको आपकी खरीदी पे मिलता है। आपके फर्स्ट लाइन में कोई माल खरीदता है तो भी 20% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। थर्ड लेवल से 10%, सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल 20, 10 और 10, 3 लेवल तक की आपको इनकम मिलती है। चौथे लेवल की इनकम लेनी है तो आपका मंथली परचेसिंग और आपके डाउनलाइन का मंथली परचेसिंग मिलके नो टाइम लिमिट, जब 1,60,000 का टर्नओवर हो जाएगा तो आप बन जाते हो डायरेक्टर। आप क्या बनते हो? डायरेक्टर बन जाते हो। जब डायरेक्टर बनते हो तो आपको 6% बिजनेस वॉल्यूम चौथे लेवल पे मिलता है। चौथे लेवल पे जितने लोग हैं उसका 6% आपको मिलेगा। अगर आपके 1 से 4 लेवल में सिर्फ 10,000 लोग हैं तो आपकी इनकम 5 लाख से 6,70,000 के बीच हर महीने होगी 1,600 के परचेसिंग पे। आप कहोगे क्या ये 10,000 लोग हर महीने 1,600 का माल लेंगे? यस, जरूर लेगी। कोई नहीं ले रहा है तो कोई ज्यादा भी तो ले रहा है ना। तो डेफिनेटली गारंटी के साथ 1,600 की एवरेज मिलेगी। कई कंपनियों में इस तरह की इनकम नहीं होती है, सिर्फ रॉयल्टी इनकम होती है। यहाँ पे आपको हर दम आपके नीचे वाले लोगों का कुछ ना कुछ मिलेगा। जब गोली खाएंगे तो वो इनकम बड़ी हो सकती है। आपके नीचे 2 लोग डायरेक्टर बनते हैं जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, जितने डायरेक्ट है इसमें से 2 लोग डायरेक्टर बनते हैं तो आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। उस वक्त 4% 5वें लेवल से शुरू होता है। 4% इनकम 5वें लेवल से शुरू होता है और आपको 3% बिजनेस डेवलपमेंट फंड मिलता है। यानी कि इस लेवल पे आपको 1 से 5 लेवल की इनकम तो मिलेगी, लेकिन आपको ये भी मिलेगा हर दम हर लेवल की इनकम ऐड होते जाएगी। आपके नीचे 3 लोग डायरेक्टर बनते हैं और एक डायरेक्टर बन गया तो आप बनते हो सिल्वर डायरेक्टर। उस वक्त 4% 6ठे लेवल से आता है और 3% ईयर एंड बोनस मिलता है। तो आपको 1 से 6 लेवल की इनकम, इसके पहले वाली रॉयल्टी और ये रॉयल्टी भी मिलती है, सब मिलेगा। और आपके नीचे 4 लोग आते हैं तो आप गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं। ये चौथा भी आ गया, गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं। 4% बिजनेस वॉल्यूम 7वें लेवल से मिलता है। 3% इंटरनेशनल हॉलीडे फंड, 1% गोल्ड रॉयल्टी। अब हो गई 4 रॉयल्टी हो गई यहाँ पर और 7 लेवल की इनकम हो गई यहाँ पर। जब आपके नीचे 6 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप बनते हो रूबी डायरेक्टर। उस वक्त 2% इनकम 8वें लेवल से होती है। 3% कार फंड मिलता है। 2% रूबी रॉयल्टी मिलती है। अब रॉयल्टी 6 रॉयल्टी हो गई और आपको 8 लेवल की इनकम मिल रही है। एमराल्ड डायरेक्टर, आपके नीचे 8 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं तो 2% 9th लेवल से मिलता है। 2% हाउस फंड मिलता है। 1% एमराल्ड रॉयल्टी मिलती है। अब 6 रॉयल्टी हो गई और 9 लेवल की इनकम। और आपके नीचे 10 लोग डायरेक्टर बनते हैं तो आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो। उस वक्त 2% 10वें लेवल से आता है। 3% डायमंड रॉयल्टी, 2% हाउस फंड। ये सब मिलते जाएगा। कैलकुलेशन करोगे और लगे रहोगे
तो आगे बढ़ते बढ़ते आपके नीचे 3 लोग डायमंड डायरेक्टर बनते हैं। एक डायमंड डायरेक्टर वो कहलाता है जिसके फ्रंट लाइन में 10 डायरेक्टर है। ऐसे 3 डायमंड डायरेक्टर बनेंगे तो आप चेयरमैन बनते हो, तो वहाँ चेयरमैन क्लब की 4% रॉयल्टी है और हाउस फंड जो 2% था 3% मिलता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 6 के मल्टीप्लिकेशन में अगर आप जाते हैं तो करोड़ों की इनकम होती है। उसका आधा भी गिनेंगे तो भी करोड़ों की इनकम होती है। कंपनी की जस्ट शुरुआत है। गुजरात में आप ही वो पायनियर मेंबर हो। पूरे गुजरात में अभी जितने बैठे हैं उसमें से कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग आए नहीं है। टोटल गुजरात से जुड़े हुए थोड़े से लोग हैं। एक अच्छा हेल्थ कंसेप्ट है, जिसको दोगे वो रोएगा नहीं, क्योंकि रो तो पहले ही रहा था। अब अच्छा होगा तो वो हंसेगा और उसकी लाइफ चेंज होगी। वो कोई दवा रेगुलर खाते रहेगा, उसके पड़ोसी को कहेगा, उसके दोस्तों को कहेगा, क्योंकि हमने बचपन से कहने का ही काम किया है। मैंने बचपन से इतना कहा है कि काल वो सारी कंपनियां मुझे पैसा देती तो 10 करोड़ तो मैं जब 21 साल का हो गया तब मेरे खाते में होता था। बचपन में कहते ना ये खा लो, ये करो, ये पिक्चर देख लो, कहते हैं ना। तो इतनी अच्छी दवा है, वजन दे के कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताइए तो आपका कारोबार कहां से कहां पहुंचेगा, क्योंकि हर चीज के रिजल्ट फास्ट है। दवाई का डोज मिनिमम है, जैसा बताया वैसा रिजल्ट आता है, ये पक्की बात है। तो यहाँ मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। 2 मिनट विकेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। मरीज है तो उसको दिया जाता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्यों देते? डायबिटीज की दवा है, लेकिन उस आदमी को फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए एंटीऑक्सीडेंट देना है, उसके ऑर्गन और सेल्स को हेल्दी रखने CO2 देना है।